the stat audit season with best of our ability and to the best of our knowledge. Just to enhance the part of the quality side from the technological angle, I try to bring in the banking commands so that we can have lesser time for better and more productive output. I, CA Avneet Singh, take this opportunity to share with you all some of the insights from the banking systems, Finacle, banks, and Utkarsh being used by mostly all of the banks of the India covering over here. अवनीत जी I take the privilege to वैसे कौन सबसे ज्यादा बैंक्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? इज इट फिनेकल, उत्कर्ष और बैंक्स? मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बैंकों द्वारा यूज किया जाता है? Sir, it is the Finacle only that is being used by most of the banks. I'm covering that in the PPT also, not only in India. Okay. It is being used by 81 countries all over the world for the banking systems. Okay. So being widely covered, widely used and most acceptable one, but also being, I have covered other softwares so that none of our member be left out that it is not covered over there. सही है बात, सही है सर, सही है, सही. So I take this privilege and opportunity to share my screen through which we will have a deliberate discussion on this banking systems and commands. Hitesh ji, visible hai properly? Thank you ji. So audit under CBS. First of all, we will try to learn what is CBS all about. Having a software, having a server at the center and being connected to all the branches of the bank through nodes, all the ATMs, not only the branches, also the regional offices, data center unit. This is called the CBS. There is a core from where banking solution works. हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले कई महीनों से और या फिर पिछले कुछ सालों से बैंक की अपनी उस ब्रांच में विजिट ही नहीं किया जहां पे अकाउंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा काम किसी भी ब्रांच से चलता है, हमारा काम एटीएम से चल जाता है, हमारा काम उस नेट बैंकिंग से चल जाता है जिसको हम अवेल कर रहे हैं. सो दैट मीन्स सर्वर is giving the data to branch, server is giving data to the ATM and the net banking portal. So this is the benefit of the CBS, that customer is now no more the customer of the branch, he has become the customer of a bank. So benefits that core banking has taken into our banking system, the working has become centralized, duplicacy and redundancy of data has been avoided, manpower at branch level gets reduced. Any new deposit, new loan scheme, if about to be launched by the bank, they don't need to give anything to specific branch level. They just put it into the software in the server level, and core banking mechanism will help us that every branch gets that new scheme code. Sukanya Samriddhi खुला तो system में code नया निकल आया. Atal pension योजना खुली तो सिस्टम में एक नया कोड आ गया. दैट मींस एवरी ब्रांच गेट्स रियल टाइम बेसिस द न्यू कोड सिस्टम फॉर एवरी डिपॉजिट और लोन स्कीम. हम में से जो लोग कंकरेंट ऑडिट करते हैं या जो स्टैट ऑडिट कर रहे हैं, वी यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रांच और रीजनल ऑफिस देमसेल्फ दैट कुछ अकाउंट्स आपकी ब्रांच में सर ओवर चल रहे हैं, इनके ऊपर अपना कमेंट कर दीजिए. कुछ बैंक गारंटीज एक्सपायर हो गई हैं, सिस्टम में अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं. दैट मींस कोर बैंकिंग हैज हेल्प्ड अस that regional office level also get a real time image for monitoring and recovery and compliance purpose, and that all together comes up better for the banking system in India. These are some of the softwares that use CBS mechanism. WhatsApp, Hangout, Telegram, these all are messaging apps, but messaging on real time basis is a mechanism. So that's why, like that, CBS is a mechanism being used by Finacle, banks and Utkarsh in most of the banks. So these are our app system. Many of the banks listed over here: Punjab National Bank, Union, Bank of India, IDBI, ICICI, Bank of Baroda, Punjab Sind Bank, Overseas, UCO, and some other also in the list being used Finacle.
and then comes some of the State Bank of India, Indian banks, CBI, Maharashtra, City Union using banks, Utkarsh being used by Canara Bank. So what is Finacle? Finacle is a core banking software using that mechanism developed by the Infosys, designed to address retail banking treasury requirements of corporate, retail, and universal banks, being used in 168 banks across 81 countries. Itself giving us the picture how Finacle is being widely used, and being a Finacle savvy will help us to be the bank auditor in at least 81 countries. So this is the main Finacle screen where we start the system to get login into the Finacle system. And when we start with the login screen, it comes over the main menu. This screen, after getting login in, ये screen अपने आप में दो हिस्सों में बटी हुई है. The left one is all commands that can be used in Finacle are listed as per the modules. Modules are called here menus. When click on that, it comes a sub menu, and then sub menu to menu option. पुनीत जी, ये सभी जो आपने बताया 9-10 बैंक फिनेकल यूज करते हैं, तो सभी बैंक्स में ऐसा ही डिस्प्ले देगा ये वाला मेन्यू? सर फिनेकल आज की डेट में बैंक्स में दो नेचर में चल रहा है. वन इज फिनेकल 7 एंड वन इज फिनेकल 10-11 जो लेटेस्ट वर्जन है. आई एम कवरिंग बोथ द वर्जन ऑफ द फिनेकल. Being Punjab and Sindh Bank, as I name, using this nature of the Finacle, Bank of Baroda, Indian Overseas using Finacle 10-11, that we will cover just later on. Right, ठीक है सर, ठीक है जी. So इस स्क्रीन जो आप सामने देख रहे हैं ये दो हिस्सों में बटी है. तो लेफ्ट साइड में मेन्यू, सब मेन्यू और मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल है. अब आपने किसी पर्टिकुलर मेन्यू के सब मेन्यू में जाकर एक मेन्यू ऑप्शन चूज की, आपको एक अच्छी रिपोर्ट मिल गई, तो अगली बार आप उसको दोबारा ढूंढने ना जाएं, तो आप उसको राइट में फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं राइट क्लिक करके, सो दैट एवरी टाइम यू स्टार्ट टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट और दैट पर्टिकुलर मेन्यू, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और राइट साइड आपके फेवरेट्स में पड़ी है. देन बॉटम लेफ्ट में देखिए एक व्हाइट बॉक्स अवेलेबल है हमारे पास, स्पेसिफाई मेन्यू ऑप्शन हियर, एंड दिस इज द गेटवे टू फिनेकल. एनी कमांड जो हमने ऊपर से ढूंढी उसको फेवरेट में रख दिया, अब उसको जब यूज करेंगे तो वो यहीं पर एंटर करते ही हम फिनेकल में अंदर एंट्री कर जाएंगे. इसके थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर देखिए, लाइट ग्रीन कलर की एक लाइन लगी है जिसको हम मैसेज एरिया कह रहे हैं. जब भी आप फिनेकल में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आने वाला मैसेज आपको बताएगा कि फिनेकल अभी यूजेज में है. कहीं आपने डबल कमांड एंटर कर दी, कहीं आप लॉग आउट होने जा रहे हैं, या कुछ भी आपको सिस्टम कन्वर्सेशन करना चाहेगा आपसे, तो दैट मैसेज एरिया विल वर्क फॉर दैट. अब राइट बॉटम में देखिए आपको एक ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है, दैट इज अ प्रोग्रेस इंडिकेटर. व्हेन जब ये ग्रीन है तो इसका मतलब इट्स अ गो. आप अपनी मेन्यू ऑप्शन एंटर कीजिए, आप अपना काम कीजिए, स्क्रीन देखिए, जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं वो मिलता जाएगा. अगर ये रेड है तो दैट मीन्स सॉफ्टवेयर अभी आपका कमांड प्रोसेस कर रहा है, सो यू हैव टू वेट, सो दैट जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाती आप अपना वेट कीजिए, कमांड को होने दीजिए, अदरवाइज सिस्टम हैंग हो सकता है या आपको आप फोर्स लॉग आउट हो जाएंगे. अगेन वो पूरा प्रोसेस आपको लॉगिन का दोबारा करना पड़ेगा. सो दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ द फिनेकल, फ्रंट स्क्रीन. अब हम जब फिनेकल में काम कर रहे हैं तो वी शुड नो और यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम जनरल कांसेप्ट्स बीइंग यूज्ड बाय द फिनेकल to address the transaction and the entries. First one is sole ID, service outlet ID. Normal like ये हमारी ब्रांच का ब्रांच कोड है 5640, 242, और कई बैंक्स में अल्फा न्यूमेरिक है, किसी में सिर्फ अल्फा है, तो ये सोल आईडी हमारी ब्रांच का कोड है. बट देन कम्स द सेट आईडी. सेट आईडी उस पर्टिकुलर सेंटर, उस पर्टिकुलर ब्रांच, उस पर्टिकुलर ऑफिस की आईडी है जहां से एंट्री पोस्ट कर दी गई है. मान लीजिए मेरी ब्रांच में कोई एंट्री हेड ऑफिस से डायरेक्टली अकाउंट्स में पोस्ट हुई है, तो वहां सोल आईडी मेरी ब्रांच का होगा, सेट आईडी डाटा सेंटर का निकलेगा. तो जिन केसेस में ब्रांच मैनेजर्स या ब्रांच ऑफिशियल्स हमें ये बताते हैं कि सर ये एंट्रीज हेड ऑफिस से डाल दी गई हैं, ये डायरेक्टली आई हैं, हमने कहीं एंट्री पोस्ट नहीं की, तो उन केसेस में सोल आईडी हमारी होनी चाहिए और सेट आईडी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ऑफिस की. अगर सेट आईडी भी ब्रांच की है, so there seems some difference between the word and deed.
कि सोल आईडी और सेट आईडी सेम है तो एंट्री बाहर से आ कैसे गई। देन कम्स द ट्रांजैक्शन डेट एंड वैल्यू डेट। जिस दिन को ट्रांजैक्शन फिजिकली हैपन हुई दैट डेट इज अ ट्रांजैक्शन डेट, बट जिस डेट से उस एंट्री का इफेक्ट लिया गया दैट इज द वैल्यू डेट। आपकी 1 अप्रैल को एफडी आपने करवाई जिसको आपने ऑटो रिन्यूअल मोड पे रखा, 31 मार्च को साल कंप्लीट हो गया, आपकी एफडी ऑटो रिन्यू नहीं हुई, आप 15 तारीख को ब्रांच में गए, आपने ब्रांच वालों से बात की, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, आपने तो ऑटो रिन्यूअल दी थी बट सिस्टम में वो ऑटो रिन्यूअल यस करना भूल गए। तो आज 15 अप्रैल को जब आपकी एफडी को रिन्यू किया जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट 15 अप्रैल हो जाएगी मगर वैल्यू डेट रहेगी 1 अप्रैल, सो दैट आपको 15 दिन का इंटरेस्ट लॉस ना हो। So that value date transaction date happens. अवनीत जी, इस पे एक, जैसे आपने ट्रांजैक्शन डेट और वैल्यू डेट की बात बताई, नॉर्मली कई बैंकों में क्या होता है, इंटरेस्ट 31 मार्च की जगह 1 अप्रैल को डला होता है। बिल्कुल। तो हम उसका इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हुए उसको ले लेते हैं 31 मार्च वाले साल में। हाँ, HDFC बैंक के मेरे पास कई क्लाइंट्स हैं जिनकी ITR भरने के वक्त हम जब चेक करते हैं, डाटा एंट्री होती है, तो उन केसेस में अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन डेट 1 अप्रैल होती है बट वैल्यू डेट आपको 31 मार्च ही मिलेगी। तो इसका मतलब बैंक ने भी 31 मार्च में डाला है, हम भी 31 मार्च, वो ठीक है। एग्जैक्टली। तो अगर वहां इनकम एक्सपेंस 31 मार्च को डाला है तो मेरी इनकम 31 मार्च को आएगी। दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। एग्जैक्टली हितेश जी। ओके, थैंक यू। और अभी जो हमने बात की कि मेरी ऑटो रिन्यूअल एफडी के वक्त सिस्टम में ऑटो रिन्यूअल यस नहीं किया गया, दैट मींस सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन दी गई दैट वाज नॉट करेक्ट। तो सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको फ्लैग कहा जाएगा। मेरे अकाउंट में उन्होंने ऑटो रिन्यूअल यस किया या नहीं, मेरा लोन फिक्स्ड यस है या फ्लोटिंग यस है, मेरे अकाउंट में लियन मार्क हो गया या नहीं, ECS लग गया कि नहीं। सो ये जितनी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को जाएंगी उन्हें हम फ्लैग वर्ड यूज करेंगे, सो दैट हम जब वर्किंग करें वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन विद द ब्रांच ऑफिशियल्स इन द मैनर, इन द लैंग्वेज सिस्टम अंडरस्टैंड्स एंड दे शुड अंडरस्टैंड। Then comes after the concept, these are the tools. ये हमारे वो औजार हैं जिनके बेसिस पे हम अपने फिनेकल की वर्किंग को और स्ट्रीमलाइन और बेटर करते जाएंगे। जो हमने मेन स्क्रीन देखा था, तो लेफ्ट में जब हम कोई मेन्यू ऑप्शन एंटर करेंगे तो उसके बाद गेटवे से अंदर जाने के लिए वी विल यूज द स्टार्टर, जिसको हम एंटर की कहेंगे। तो एंटर की से हम अंदर की तरफ फिनेकल में एंटर कर जाएंगे और एक बड़ा हमारे पास विशाल बैंकिंग सिस्टम हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन दर स्क्रीन आगे बढ़ने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए वी विल यूज आवर मूविंग फॉरवर्ड की F4, और वैसे ही स्टेप बाय स्टेप वापस आने के लिए वी विल यूज F3, और कुछ बैंक्स में एस्केप से भी वो बैकवर्ड मूवमेंट कस्टमाइज की गई है। देन कम्स, अब बैंकिंग सिस्टम में वो मेरे से कई जगह पूछेगा जब हम आगे डिस्कस करते जाएंगे कि सर यहाँ पे अकाउंट नंबर दीजिए, यहाँ पे आप एक ऑप्शन बताइए आप देखना क्या चाहते हैं। वी नीड टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम, बट मैं वो इंस्ट्रक्शन जानता नहीं क्योंकि सिस्टम तो कोड बेस्ड वर्किंग कर रहा है। सो क्या वहां पर आए जिससे मेरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आउटकम बनकर निकल आए, तो उसको ढूंढने के लिए मेरे पास F2 और F1 नाम के 2 लोकेटर्स अवेलेबल रहे। और जब भी मैंने वो लोकेटर से अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढ ली तो इट इज प्योरली लाइक कि मैंने अपने फोन से अपने दूसरे नंबर पर कॉल दी, वो थोड़ी दूर मेरे को मिल गया, वो किसी बुक के नीचे पड़ा था, किसी फाइल के नीचे पड़ा था। अब मैंने लोकेट तो कर लिया, अब जब मेरा हाथ उसको उठाने के लिए जा रहा है तो माई हैंड विल वर्क एज अ पिकर। तो इसी तरह सिस्टम में जब अकाउंट नंबर ढूंढ लिया गया, जब वो मेन्यू ऑप्शन ढूंढ ली गई, तो उसको मेन स्क्रीन में डालने के लिए या तो मैं याद करके आऊंगा कि उसमें ABKPBL लिखा था, तो इससे तो मैं भूल भी सकता हूँ। सो उसको एज सच ही उठाकर लेकर आऊं सो दैट के कहीं उसमें मिस गैप ना रहे। तो वी विल यूज आवर पिकर शिफ्ट प्लस F4, और जितनी ट्रांजैक्शंस मैं चेक कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे, मैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बाद उसके अंदर जाना चाहता हूँ कि सेकेंड एस्पेक्ट, नेक्स्ट एस्पेक्ट, उसकी ड्रिलिंग करूंगा इसमें और क्या अवेलेबल हो सकता है, खुदाई कर रहा हूं उस इंफॉर्मेशन की। सो दैट विल हेल्प मी थ्रू कंट्रोल प्लस। और जब भी मैं सिस्टम से
प्रिंट की कमांड दे रहा हूं जिसको मैं वापस नहीं ले सकता, दैट विल बी इररेवोकेबल एक्सरसाइज। आई एम फिक्सिंग समथिंग फॉर परमानेंट, दैट इज F10। और जितनी स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल है, जब भी मैं ऊपर की स्क्रीन देखूंगा, स्क्रीन दैट मीन्स पूरी की पूरी स्क्रीन रोटेट करूंगा, तो अप के लिए कंट्रोल U और डाउन के लिए कंट्रोल D। और अगर मैं एंट्री बाय एंट्री मूव करना चाहता हूं तो अप और डाउन एरोस। एक एक स्टेप बैक आने के लिए मेरे पास F3 था, मगर एक ही साथ फुल जंप बैक करने के लिए, वापस आने के लिए आई विल यूज Q प्लस F4 यानी क्विट। सो ये कुछ औजार हैं जो मुझे हेल्प करेंगे पिनेकल के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वापस आने के लिए। गियर डाला, रिवर्स डाला, डिटेल डिगिंग की, उस चीजों को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए। सो दीज विल ऑल हेल्प। सो जो भी डिस्कस किया था, ये फिनेकल 7 की कुछ कमांड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपना काम और बेटर करते जाएंगे। फर्स्ट वन इज ACLI, अकाउंट लेजर इंक्वायरी। So this is our main screen after the login. लेफ्ट साइड पे वो मेन्यू ऑप्शन पूछ रहा है एंड आई एंटर ACLI। तो जैसे ही मैंने ACLI किया, सिस्टम मेरे से मांग रहा है कि आप अकाउंट नंबर बताइए जिसकी आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं। और अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पेपर से ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर उठाऊं, यहाँ पर मैन्युअली भर दूं और डेट डाल दूं से 1/4/22 से 31/3/23, तो पूरे साल का उस अकाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई। बट अगर मेरे पास उसका अकाउंट, यस प्लीज सर। अवनी जी, यहाँ पे ना कई बार वो सिस्टम बोल देता है कि आप यू कैन नॉट गो बियॉन्ड लास्ट 3 मंथ्स। तो जब यस यहाँ यस यस, तो ये यहाँ कस्टमाइजेशन है सर। कई बैंक्स ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इतना बड़ी विंडो ली ही नहीं हुई। तो अगर उसमें 90 डेज की ऑप्शन रहेगी, 3 मंथ्स या 90 डेज, तो फिर आपको उस अकॉर्डिंगली 1/4 से 31 अगस्त, जुलाई से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर उठाना पड़ेगा। उसमें कोई थोड़ा सा उसमें हाँ क्यूम्बर सम हो जाता है, बट ये है कि अगर कस्टमाइजेशन ऐसी करवा रखी है ड्यू टू सिस्टम सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, सो वी हैव टू अवॉइड बाय दैट। ओके। तो यहाँ पे जब मेरे से अकाउंट नंबर मांगा गया, अब अकाउंट नंबर या तो मैं CCOD की लिस्ट से उठाकर डाल दूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरे से बात हुई थी तो मुझे अकाउंट नंबर अभी नहीं मिला, बट आई वांट टू कि एक अकाउंट का बता रहे थे, उसको चेक करना चाहता हूं मैं। सो मैं इसमें ऑप्शन डालूंगा, मैं ढूंढना चाहता हूं इसमें आए क्या, तो मेरे लोकेटर्स मुझे हेल्प करेंगे। तो जैसे ही मैंने F2 किया, तो ये स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो गई कि सर आप क्लू दीजिए, आपको कैसी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हम वैसे ही ढूंढ कर देंगे। ये सिस्टम मेरे से कन्वर्सेशन कर रहा है, वो कह रहा है कि सर नाम बता दीजिए, मैं नाम से ढूंढ देता हूँ आपका पर्सन। आप कस्टमर आईडी बता दीजिए, मैं कस्टमर आईडी से ढूंढ दूंगा। आपके पास GL सब हेड कोड है, आपके पास स्कीम कोड है, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके पास है आप बताइए, सिस्टम आपको डाटा देगा। से मैंने यहाँ पे कुमार डाल दिया, तो जैसे ही मैंने कुमार डाला तो उसने सभी कुमार मेरे सामने रख दिए, चाहे वो फर्स्ट नेम है, चाहे वो लास्ट नेम है, चाहे वो एलियास में लिखा है। सो जितने भी कुमार थे सभी मेरे पास आ गए। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल D से जितना नीचे तक जाना चाहता हूँ, अपनी पसंद का अपनी रिक्वायरमेंट वाला अकाउंट ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। अब जिस अकाउंट को रेड हो रखा है वो अकाउंट ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि मैं मेन अभी सिलेक्शन में पड़ा है। मान लीजिए इसी अकाउंट को मैं चाहता हूं कि मैं मेन अकाउंट नंबर वाली स्क्रीन पे ले जाऊं। अब मैं एक कागज पर इसका अकाउंट नंबर नोट करूंगा 1372, पर ये तो बड़ी लेबर का काम हो गया। सो मेरा शिफ्ट F4 यानी कि पिकर यहाँ पे काम करेगा मेरे लिए, कि इसी अकाउंट को सिलेक्ट किए हुए मैं शिफ्ट और F4 को दबाऊंगा तो ये अकाउंट नंबर को मेन स्क्रीन पे ले जाएगा जहां से हम चले थे। तो जैसे ही यहाँ पे अकाउंट नंबर आया और डेट मैंने डाली है, तो F4 करते ही, क्योंकि फॉरवर्ड स्क्रीन पे जा रहे हैं, F4 करते ही मेरे पास एक अकाउंट लेजर ओपन हो गया। सो यहाँ पे मेरे को अवेलेबल है कि अकाउंट ओपन कब हुआ, उसका बैलेंस ओपनिंग यानी कि जो मैंने पीरियड सिलेक्ट किया उस पीरियड में ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग कितना है, अकाउंट का स्टेटस क्या है और ये स्टेटस किस डेट का है। और सामने मेरे पास कुछ एंट्रीज शो हो गई उसके, और इन एंट्रीज के आगे की देखना चाहता हूँ 1 बाय 1 तो डाउन एरो, और अगर 1 से 10 आ रही है, मैं 11 से 20, 21 से 30 देखना चाहता हूँ तो कंट्रोल D। पूरी स्क्रीन आगे आगे मूव कर जाएगी। तो ट्रांजैक्शंस तो मिल गई। अब ट्रांजैक्शंस में मेरे को कुछ डेबिट्स दिख रहे हैं, कुछ क्रेडिट दिख रहे हैं। आई वांट के जिस जो क्रेडिट हुआ है वो तो मेरे को दिख गया,
इस अकाउंट में हुआ है, मगर उसका डेबिट कहाँ हुआ? जो डेबिट है वो यहाँ है, तो उसका क्रेडिट कहाँ पर हुआ? तो इस ट्रांजैक्शन के मैं अंदर जाना चाहता हूँ, उसकी ड्रिलिंग करना चाहता हूँ और ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता हूँ यहाँ से, तो कंट्रोल ई, यानी कि मेरा ड्रिलर मेरी हेल्प करेगा। तो ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल ई कर दिया जाएगा। करते ही वो बता रहा है कि इस अकाउंट से इतनी अमाउंट डेबिट की गई है, इस पर्सन के नाम पर अकाउंट था और ये उसकी नरेशन है, किस पर्पस और किस वजह से अकाउंट में अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हुई। सो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा, बेसिक इंफॉर्मेशन तो आ गई। अब यहाँ पे स्पेसिफिक सेंटर में मेरे को एक बॉक्स मिल रहा है, स्पेसिफाई ऑप्शंस। तो अगेन वो एक मेरे को ऑप्शन दे रहा है, काम सर आप बताइए आगे क्या देखना चाहते हैं, बट मैं तो उसका कोड ही नहीं जानता। तो F1 और F2 मेरे लोकेटर्स मेरी हेल्प करेंगे कि यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन ढूंढ कर निकालूं। और इसमें एक ऑप्शन आपको अवेलेबल होएगा, लिस्ट ऑल पार्ट ट्रांजेक्शंस। सो जैसे ही आप वो ऑप्शन करेंगे, वो आपको बताएगा कि डेबिट का क्रेडिट क्या है और क्रेडिट का डेबिट क्या है। अब ये तो हो गया लेजर इंक्वायरी। मैं अदर देन लेजर उस अकाउंट के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे को उसकी ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए। देन ACI, अकाउंट इंक्वायरी। सो जैसे मैंने ACI किया, उसने मेरे पास अकाउंट नंबर मांगेगा, मैं F2 करके ढूंढ लूंगा, वो मेरे को अब करना आ गया। तो अकाउंट नंबर ढूंढ के शिफ्ट F4 करके वहां पर डाल के जैसे ही F4, तो ACI की ये मेन स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इसमें पार्टी का नेम, अकाउंट बैलेंस, एग्रीगेट लिमिट, और नीचे यहाँ पे एक छोटी सी ऑप्शन मिल रही है, कोल बॉक्स अवेलेबल है, फील्ड अवेलेबल है कि अब यहाँ पे ऑप्शन दीजिए। अगेन मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, तो मैं यहाँ नहीं जानता क्या आएगा, मगर मेरे लोकेटर्स मेरी हेल्प करने से कभी नहीं चूकेंगे। तो जैसे मैंने F2 किया, तो उन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप इनमें से कोई भी कोड डालें, हम उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको रिपोर्ट दे देंगे सर। आपको रिलेटेड पार्टी की डिटेल चाहिए, आपको नॉमिनेशन की चाहिए, आप स्कीम देखना चाहते हैं, आप जनरल अकाउंट डिटेल देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, लिमिट हिस्ट्री, टर्नओवर, लेजर इंक्वायरी, सब यहाँ पे से भी अवेलेबिलिटी सभी की दे देगा। तो क्या क्या यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, मैंने कुछ इलस्ट्रेटिव से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। हम यहाँ से अकाउंट की इंक्वायरी उठा सकते हैं। लेजर क्लासिफिकेशन क्या है, अकाउंट की स्टैंडर्ड है और किस डेट से है, अकाउंट में कितने लियन मार्क हैं, कितनी लियन की अमाउंट है, कब तक के लिए मार्क किए गए हैं, अकाउंट की सैंक्शन लिमिट की डिटेल्स क्या है, कब से कब तक चल रही थी। आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखिए स्क्रीन पे आपके सामने, सबसे नीचे 23/1/2006 से 24/1/7 तक के लिए अकाउंट सैंक्शन हुआ, फिर 25/6 से शुरू हुआ, 24/6 पे खत्म हो गया। तो जनवरी 7 से जून 7 तक का गैप पड़ गया यहाँ पर। और जैसे ही मैं अगली देखता हूं, तो जून 8 की बजाय जनवरी 8 में जाके अकाउंट आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 5-6 महीने का गैप तो यहां भी पड़ गया। सो दीज थिंग्स टेकिंग टुगेदर आपके रेवेन्यू लीकेज का स्कोप बन गया। आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं किसी साल में ऐसे ही 2-2, 3-3 महीने का गैप देते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि 1-1.5 साल की फीस ही छूट गई हो। सो दिस कमांड विल हेल्प यू देयर। अब सिस्टम में सैंक्शन लिमिट क्या भरी है और डीपी क्या भर रखी है, देखिए डीपी सैंक्शन लिमिट से भी बड़ी है। अब इसकी एक्चुअल चेकिंग कहां से होगी कि सही है या गलत, ये अगली स्क्रीन में हम देखने जाएंगे। देन कम्स, आप रीपेमेंट शेड्यूल चेक कर सकते हैं इसी कमांड से। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अकाउंट बता रहा है कि ओवरड्यू चल रहा है 3,172 रुपए से, और इंस्टॉलमेंट यहाँ नीचे दे रखी है 3400 रुपए। सो आई कैन इजिली कैलकुलेट कि ये 1 महीने के कम से कम ओवर में चल ही रहा है, तो एक इंस्टॉलमेंट ड्यू यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो ये इंस्टॉलमेंट कब से ड्यू हुई, मंथली फ्रिक्वेंसी है या क्वार्टरली है, अगर 31 डेज का शेड्यूल भरा गया है या नहीं, तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर इन द रीपेमेंट शेड्यूल। आप यहाँ पे जनरल अकाउंट डिटेल्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि LFAR हमारे में एक नया पॉइंट पिछले 2 साल से जब रिवीजन हुई है तो आया है, क्या इंटरेस्ट रेट्स आर प्रॉपरली एंड करेक्टली फेड इनटू द सिस्टम। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इंटरेस्ट रेट कोड अवेलेबल है, तो इससे आपको पता लग गया कि इंटरेस्ट रेट किसके साथ से कोड में चल रहा है। ये CC का अकाउंट था। उसके बाद नीचे मेंशन्ड है वेदर अकाउंट इज पेग्ड, अगर पेग है तो रिव्यू डेट क्या है। तो जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे उनके केस में तो पेगिंग नो हो जाएगी,
और जो फ्लोटिंग रेट रहेंगे उनके केस में पैगिंग यस होगा, यस होगा तो उसकी रिव्यू डेट अवेलेबल होगी, कब चेंजेस होते गए। तो टेकिंग ऑल दीज, आप अदर देन लेजर कुछ भी वेरीफाई कर रहे हैं तो ACI दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू। इवन TDS इंक्वायरी भी आप डाल सकते हैं, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना TDS कट गया, 10% का रेट देखिए बड़ा क्लियर बन रहा है, तो वी कैन ऑल्सो चेक दैट साइड ऑल्सो। अब ये जो मैंने अभी तक 2 कमांड की, ये तो अकाउंट बेस्ड कमांड है, एक अकाउंट उठाया उसकी स्टडी कर ली, उसका एनालाइज कर लिया। बट अगर मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर स्कीम कोड में, एक पर्टिकुलर GL कोड में कितने अकाउंट आ रहे हैं उसकी लिस्ट चाहिए मेरे को, ताकि मैं एक एक अकाउंट ऊपर की कमांड से चेक कर लूं। तो लिस्ट निकालने के लिए देयर कम्स ACS, अकाउंट सिलेक्शन। तो जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया, ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हो गई, और टॉप में देखिए 3rd नंबर पर GL सब हेड कोड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे GL सब हेड कोड डालता हूं, तो ये इस सब हेड कोड में जितने भी अकाउंट हैं उसकी लिस्ट मेरे सामने रख देगा। अब आप राइट साइड की तरफ देखिए, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पर ओपन डेट लो, ओपन डेट हाई। तो 1/4/2022, 31/3/2023, तो लो और हाई ओपन डेट डालते ही मेरे पास इस अपना पीरियड में कितने अकाउंट ओपन हुए उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और अगर GL सब हेड कोड डाल रखा है तो उस कोड के सारे अकाउंट आ जाएंगे, और अगर नहीं डाला तो ओवरऑल जितने अकाउंट ब्रांच में इस पीरियड में खुले वो सब आ जाएंगे। और अगर LFAR का एक पॉइंट क्विक मोर्टेलिटी केसेस का भी है, तो उसको देखने के लिए इसी कमांड से क्लोज डेट लो, क्लोज डेट हाई में जाके निकाल लेंगे कि कोई अकाउंट बंद हो गए कि नहीं। सो NPAs कितने बने थे उसमें से क्विक मोर्टेलिटी तक हम पहुंच सकते हैं। देन अकाउंट तो हो गए, अब आ गई रिपोर्ट्स की बारी। सिस्टम में से जब भी रिपोर्ट्स निकालने की बारी आएगी, कितने अकाउंट ओवर ड्यू चल रहे हैं, कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, कितने अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 लग रहा है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट। तो ऐसी कमांड्स, ऐसी रिपोर्ट्स को निकालने के लिए हमारे पास MIS REP और MIS RPT मिसलेनियस रिपोर्ट्स के नाम पे कमांड अवेलेबल है, जिसको बैंक्स में अब UBI RPT, PSB RPT, PSB REP के तौर पर भी यूज किया जा रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इट सेज मी कि आपका मॉड्यूल नेम बताइए। तो ये फिनेकल के टूल्स जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए, दैट विल वर्क ओवर हियर, कि जहां कुछ नहीं पता वहां पे मैं F1 और F2 से अपनी हेल्प लूंगा। तो मैं मॉड्यूल नेम नहीं जानता, मैंने हेल्प ली, तो मॉड्यूल नेम के बाद वो रिपोर्ट का नंबर पूछ रहा है, अगेन मैं हेल्प लूंगा, मेरे पास रिपोर्ट का नंबर भी आ जाएगा, तो डिटेल्स निकल आएंगी। अब ये कैसे आती हैं, आइदर दिस वे, यहाँ पे भी वो टाइप और रिपोर्ट नेम पूछ रहा है, एक स्टाइल ये है जिसको मैं F2 से निकालूंगा। अब उसने मॉड्यूल नेम पूछा था तो मेरे पास 5-6 मॉड्यूल आ गए। अब इसमें से मैं क्या उठाना चाहता, लीजिए क्रेडिट को उठा लिया तो वहां डाल दिया। तो क्रेडिट को उठाने के बाद वो पूछता है रिपोर्ट बताइए कौन सी। तो सारे क्रेडिट मॉड्यूल में कौन सी कोड के साथ ये रिपोर्ट्स निकलने जा रही हैं, आप यहां से एक एक करके उठा सकते हैं। जस्ट आप पहली रिपोर्ट उठा लीजिए, एडवांस अगेंस्ट शेयर्स। तो हमारे LFAR में एक पॉइंट पिछले 2 साल से ऐड हुआ है कि बायबैक शेयर के लिए कितने क्रेडिट दिए गए। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप ये रिपोर्ट काम करने वाली रहेगी। LFAR में 3 मंथ्स और 6 मंथ से ऊपर के रिव्यू जो अकाउंट पेंडिंग है उनकी लिस्ट मांगी गई है आपके पास, वो भी यहाँ अवेलेबल है। LFAR में NPAs और SMS की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया, तो वो भी रिपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो रिपोर्ट्स आपकी यहीं से निकलती जाएंगी, बस आपको सिस्टम में उसको ढूंढने और निकालने का प्रोसीजर मिलता जाएगा यहाँ से। एक स्टाइल ये है कि मेन क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन। तो आप रिपोर्ट्स के निकालने का मॉड्यूल, रिपोर्ट टाइप, क्लासिफिकेशन, व्हाटसोएवर द नेम, प्रोसेस यही रहेगा। और जैसे ही आपने किसी रिपोर्ट के ऊपर जाकर ओके कर दिया, तो रिपोर्ट उठा ली, तो ये आपको ऑप्शन दी जाएगी कि रिपोर्ट का अब करना क्या है। सिस्टम के पास वो रिपोर्ट आ गई, क्या आप उसको फॉरग्राउंड में देखना चाहते हैं या बैकग्राउंड। तो हमेशा यहाँ पर बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिए। द मोमेंट आप फॉरग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो आपका PC रुक जाएगा जब तक वो रिपोर्ट जनरेट होकर आपके सामने आ नहीं जाती। तो आप अपना काम मत रोकिए, बैकग्राउंड में डाल दीजिए, पीछे जनरेट होती रहेगी, फ्रंट में आप काम करते रहेंगे।
देन ही इट आस्क प्रिंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ऑलवेज नो कीजिए सो दैट बैकग्राउंड में रिपोर्ट बन जाए, देख लें, फिर देखेंगे प्रिंट चाहिए या नहीं। और जैसे ही आपने प्रिंट रिक्वायर्ड को नो किया तो यहाँ पे आप कमांड को परमानेंट डालना चाहते हैं, रिपोर्ट बनानी है, तो इसका मतलब वापस नहीं आएगा कि दोबारा से आएगा, तो रिपोर्ट बन जाएगी, यानी कि F10 से आप इसको फिक्स कर देंगे कि ये रिपोर्ट मैंने उठा ली, अब सिस्टम मेरे को रिपोर्ट वहां पर दे दे। अब आपने रिपोर्ट बना ली, ढूंढ ली, उसके बाद इसको देखेंगे कहां पर, देन इट कम्स इन द PR प्रिंट रिपोर्ट्स। एक तो आप PR कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जहां पे आपने B और N अभी किया था F10 कर दिया, उसके बाद उसी स्क्रीन पर चाहे F5 कर दीजिए। F5 करते ही आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, और जैसे ही आप देखिए इसमें 10 नंबर पर भी वही चीज अवेलेबल है PR, तो बॉक्स में 10 डाल दीजिए, चाहे बाहर से आकर PR से एंटर मार लीजिए, तो बोथ विल वर्क। और ये आपके पास आपकी वो रिपोर्ट्स आ गई जिनको आपने निकाला होगा। एरो बता रहा है कि आपकी रिपोर्ट ये एट प्रेजेंट सिस्टम पकड़कर रखा हुआ है, आप किस रिपोर्ट को खोलना चाहते हैं उसके आगे एरो डाल दीजिए विद अप और डाउन एरो। और यहाँ पर नीचे बॉक्स दे रखा है कि इसमें आप ऑप्शन डालिए, करना क्या चाहते हैं रिपोर्ट का। ऑप्शंस क्या है मेरे पास, P फॉर प्रिंट, D फॉर डिलीट और T फॉर टाइप। तो सबसे पहले मैं T डालकर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करवाऊंगा सिस्टम में कि वो टाइप होकर मेरे सामने आ जाए। लीजिए रिपोर्ट आपके सामने टाइप होकर आ गई। और जैसे ही ये रिपोर्ट आपके सामने आई, आप इसमें देखिए, अगर ये पर्पसफुली आपके मतलब की है, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपको चाहिए वो डाटा मिल गया, तो आप इसको प्रिंटिंग में डाल सकते हैं। अब प्रिंटिंग में कैसे डालेंगे, तो यही स्क्रीन पर मैं P का बटन दबाऊंगा और ये मुझे यहाँ ले जाएगा। तो ये पूछ रहा है प्रिंटर आईडी, तो बैंक का जो लोकल प्रिंटर है वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ कॉपीज 1 आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, डिलीट फाइल ऑन प्रिंट। डिलीट फाइल ऑन प्रिंट ऑलवेज इट शुड बी नो, बाय डिफॉल्ट वाई आता है, बट हम इसको N करके ही रिपोर्ट को आगे लेकर जाएंगे, सो दैट कहीं रिपोर्ट प्रिंटिंग में दिक्कत आ जाए, ना प्रिंट हो, तो यहां से कम मेरे बैकग्राउंड मेन्यू से तो डिलीट ना हो, मेरे को दोबारा ना ढूंढनी पड़े, दोबारा टाइम ना लगाना पड़े। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे को रिपोर्ट प्रिंटिंग फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में नहीं चाहिए, मेरे को सॉफ्ट में मिल जाए, अगर ये एक्सेल में आ जाए, तो मैं इसमें से फिल्टर सॉर्टिंग लगाकर अपना बढ़िया सा एक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूं। देन आई विल क्लिक कंट्रोल E, तो ये रिपोर्ट मेरी पीसी के C ड्राइव में रिपोर्ट डायरेक्टरी में चली जाएगी। तो जैसे ही वहां जाएगी ये TXT फॉर्मेट होगा, कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट, सेटिंग फिल्टरिंग करके मैं अपने हिसाब से इसको ढाल लूंगा। तो ये रिपोर्ट मेरी बेस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटी, आप यही चूज कीजिए कि रिपोर्ट आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट में दे दे, सो दैट आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सके। अब हम जो बात कर रहे थे कि लिमिट कुछ दे रखी है और लिमिट से ज्यादा ड्राइंग पावर दे रखी है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए वी विल गो विद ACCBAL, अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी। अगेन यहाँ पे अकाउंट आईडी मांगेगा, अगर मेरे पास है तो मैं टाइप करूंगा, नहीं तो F2 से नेम से अकाउंट नंबर शिफ्ट F4 से उठाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा। F4 करते ही मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो गई। तो जैसे ही ये स्क्रीन मेरे पास ओपन हुई, लेफ्ट साइड में देखिए बैलेंस दे रखा है 6,68,000 रुपए, सैंक्शन लिमिट 10 लाख, और राइट साइड पे ड्राइंग पावर दे रखी है 10,96,000। तो डीपी तो सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो नहीं सकती, तो यहाँ पे मैं सोचूंगा गड़बड़ तो नहीं है कि आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट, दैट इज व्हाई राइट साइड नीचे देखा तो अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 3,31,000। तो अगर मैं क्लियर बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस को एक साथ मर्ज कर दूं, तो ये मेरा लिमिट जितनी फिगर बन रही है, तो इसका मतलब डीपी फीड ज्यादा की गई है, मगर इम्पैक्टफुल विच एवर इज लेस का कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम 10,96,000 दोनों में से जो कम है उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहां मैं एक बार रुक गया, तो आई एम सेटिस्फाइड के सिस्टम कैलकुलेशन तो ठीक कर रहा है, गलती नहीं हो। तो ऐसे कुछ अकाउंट्स जो मेरे पास किसी लिस्ट में निकल कर आ रहे हैं कि डीपी से सैंक्शन लिमिट से ज्यादा डीपी लिख रखी है, तो मैं ACCBAL से
इस चीज को वेरीफाई कर लूंगा, और कहीं सैंपल टेस्टेड हो गया तो मैं सैंपल अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल लूंगा कि मैंने ये 25 अकाउंट, ये 20 अकाउंट, 50 अकाउंट वेरीफाई किए, और कहीं उनमें से किसी अकाउंट में यहाँ डिफॉल्ट दिख जाता है कि ये 31 की फिगर ना होकर 4 लाख की आ जाती, तो आई एम प्रेटी श्योर कि वो डीपी इज मोर अगर है तो वो गलती कर रहा है। सो दैट विल हेल्प मी कि वो कब से कर रहा है, उस पीरियड के दौरान अकाउंट ओवर तो नहीं रहा लिमिट के सामने अगर देखें तो, और अगर ओवर रहा तो कितने दिन से। तो टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इट विल हेल्प मी के ज्यादा से ज्यादा आप सिस्टम्स के लूप होल्स निकाल पाएंगे। देन कम्स डिपॉजिट बेस्ड कमांड। अब मेरे एलएफआर में एक पॉइंट आ रहा है केवाईसी एंड एएमएल का। तो सिस्टम के पहले सबसे पहले तो मैं कासा के फॉर्म्स निकलवा कर वहां पे अपनी चेकिंग कर लेता हूँ। अकाउंट फोटो लग रखी है, पैन कार्ड लग गया, आधार कार्ड लग गया, इंट्रोड्यूसर के साइन हो गए, उसने पैन अगर नहीं दिया तो फॉर्म भर रखा है या नहीं, तो ये तो सारी चीजें चेक हो गई। बट क्या ये चीजें सिस्टम में ठीक से एंटर कर दी गई या नहीं, तो दैट विल हेल्प मी थ्रू कस्टमर मास्टर मेंटेनेंस CUMM। तो जैसे ही मैंने CUMM किया तो मेरे पास फंक्शन इज इंक्वायर, बिकॉज एन ऑडिटर वी जस्ट नीड टू इंक्वायर एंड नॉट टू ऐड और डिलीट एनीथिंग। तो आई के बाद कस्ट आईडी पता है तो डालेंगे, नहीं तो मेरे लोकेटर्स काम करेंगे, F1 F2, और मैं वहां से ढूंढकर यहाँ शिफ्ट F4 करके डाल दूंगा। तो जैसे ही डाली इट सेज के पर्सन का नाम क्या है, इस डेट का स्टेटस देख रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इंट्रोड्यूसर की डिटेल्स क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी TDS इंक्वायरी क्या है, उसकी कास्ट कम्युनिटी की डिटेल आ रही है। समटाइम्स गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम जो माइनॉरिटी या किसी पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की है, तो उस केस में हम चेक कर लें कहीं फिजिकल रिकॉर्ड और सिस्टम में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन में वेरिएशन हो और स्कीम का बेनिफिट कोई अनड्यू ले जाए। तो दैट इज ऑल्सो बीइंग एन ऑडिटर वी नीड टू चेक उसकी TDS के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो TDS की कैटेगरी क्या दी है, उसका पैन नंबर भरा है या नहीं, अगर नहीं भरा तो 20% का रेट होना चाहिए, दैट वी नीड आल्सो टू चेक। तो यहाँ से जो फिल्टर निकलेगा वो सैंपल कहीं और काम आ जाएगा। अगर वो सैलरीड है तो एम्प्लॉय की डिटेल, उसके अलावा अगर जो ट्रस्ट की या पॉलिटिकल पार्टीज की या नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे, सेविंग अकाउंट खुल रखे हैं, तो उन केसेस में बिजनेस की एसेट्स, नेटवर्थ, डिपॉजिट्स, फंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड लेंडिंग कितनी हो रखी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक हो जाए। तो उस पर्टिकुलर आप अगर 100 अकाउंट खुले हैं ब्रांच में एक साल में कासा के, और कासा में से मैंने मान लीजिए 25 का सैंपल बना लिया और 25 में से 10 का मैं फिजिकल सिस्टम से साथ टैली कर रहा हूँ, सो दैट वे थिंग्स विल टर्न अप कहां पर कोई गलती हो रखी है। तो अगर आपने यहाँ पे सीनियर सिटीजन का अकाउंट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी वेदर दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन FDR रेट्स, और फिजिकल रिकॉर्ड में क्या वो सही है, और यहाँ पर अगर वो अंडर गार्डियन है तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अगर कहीं ड्यूरिंग द ईयर वो अंडर गार्डियन मेजर हो चुका है तो क्या नया फॉर्म, नए डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, अगर नहीं लिए तो ट्रांजैक्शन उस पीरियड के बाद किसने कर रखी है। तो ये कुछ चीजें आपको हेल्प करेंगी। कहीं पर कोई छोटा सा अगर फ्रॉड या किसी नेचर से कोई गलती भी हो रही है ब्रांच लेवल पर, तो उसको टाइमली डिटेक्ट किया जा सके। देन अकाउंट फ्रीज स्टेटस मेंटेनेंस। आपने अकाउंट में कुछ चार्जेस, किसी तरह की एनॉमली ढूंढी, उन्होंने कहा सर ये डेबिट नहीं हो पाएगी क्योंकि अकाउंट फ्रीज है। तो अगर फ्रीज है तो मान लिया डेबिट तो नहीं हो पाएगा। अगर डेबिट नहीं हो पा रहा ठीक है, तो फिर फ्रीज क्यों किया गया? सर फ्रीज इसलिए किया क्योंकि इनकम टैक्स से लेटर आ रखी थी, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, ये देखिए अकाउंट फ्री स्टेटस मेंटेनेंस और फ्रीज कोड दे रखा है जी इनकम टैक्स। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम में उसको फ्रीज कर दिया गया, कोड भी दे दिया, तो क्या डिपार्टमेंट की वो लेटर आपके पास रिकॉर्ड पे अवेलेबल है जिसके बेसिस पे किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको सिर्फ इसीलिए फ्रीज किया ताकि इसमें वो डेबिट हो ना पाए और ये अकाउंट ओवर होकर नॉन परफॉर्मिंग मोड में ना चला जाए और बाद में इसको अनफ्रीज करके फिर एंट्री दे देंगे 31 के बाद। तो ऐसी कोई चीजें स्ट्रक्चर तो नहीं की गई है, दैट कैन आल्सो बी चेक्ड ओवर हियर।
तो जो चार्जेस आपने मान लीजिए चेक किया, फ्रीज भी था, चिट्ठी भी लग रखी है, मान गए, बट सर जब भी अकाउंट अनफ्रीज होगा, जब भी इसमें अब डेबिट की ऑप्शन आएगी, जब पैसे आ जाएंगे, तो कम से कम तब तो चार्जेस ले लीजिएगा। इसलिए सर लियन मार्क कर दीजिए सिस्टम में, और मार्क करवाने के बाद इसको ALM से यहाँ वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी लियन की अमाउंट और डिटेल सारी यहाँ पर एक्चुअली वही आ गई जो आप चाहते थे। जो काम हम CUMM में कर रहे थे उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, KYC फिल। तो ये भी आपको हेल्प करेगी कि आप उस पर्टिकुलर पार्टी की डिटेल्स को, बेसिक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर पाए। Then balancing report of bills purchased, foreign bill inquiry, BR, BPR, FBI. Then आपके पास एक एज अ स्टैट ऑडिटर 22-23 का, स्पेसिफिकली 22-23 के स्टैट ऑडिटर के तौर पर पिछले साल एक में RBI ने कम से कम 4 से 5 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए हैं, और हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते गए। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI बढ़ा रहा है तो बैंक ने बढ़ाए होंगे, बैंक ने बढ़ाए हैं तो बैंक की इनकम बढ़ी होगी। और अगर कुछ अकाउंट जो फ्लोटिंग पे होने चाहिए थे बट फिक्स्ड पे रखे बाय मिस्टेक और बाय डेलिब्रेशन, दोनों ही केसेस में आपको वो चेक करने होंगे। तो जिस जिस अकाउंट में आपको डाउट हो उनमें इंटरेस्ट रेट के चेंजेस आप INTTI से वेरीफाई कर सकते हैं। तो टेबल कोड क्या रहा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, किस डेट से किस डेट तक कौन सा इंटरेस्ट रेट लगता रहा, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। देन कम्स गारंटी इंक्वायरी। गारंटी एक ऐसा नॉन बेस्ड फंड लिमिट है जिसका अकाउंट तभी बनता है जब गारंटी इन्वोक हो। तो जब अकाउंट नहीं है तो मैं चेक क्या करूंगा? तो इस चीज को कवर अप करने के लिए वी विल वर्क थ्रू गारंटी इंक्वायरी, GI। तो यहाँ पे आपके पास देखिए पहले ही आ गया गारंटी टाइप, तो किस नेचर की गारंटी ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ गई इशू डेट लो, इशू डेट हाई। 1/4/22 से 31/3/23 तक जितनी भी बैंक गारंटीज इशू हुई उन सब की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो सबके चार्जेस जो पूरे इस साल में गारंटीज इशू की गई, 1 बाय 1 आप सबके चार्जेस चेक कर पाएंगे। मान लीजिए अब कोई गारंटी साल में ओपन हुई 3 महीने के लिए और वो साल के दौरान ही खत्म भी हो गई, तो इसका मतलब यहां से जो पूरे साल की लिस्ट निकलेगी, चार्जेस तो चेक हो जाएंगे बट कंटिजेंट लाइफ फिगर लिख रखी है यहाँ मैच नहीं करेगी। तो उसके लिए तो मेरे को वो गारंटी चाहिए जो किसी भी साल में इशू हुई हो, चाहे पुराने में चाहे नए में, बट 31/3 को पेंडिंग हो। तो उसको निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर के पोर्शन में सेकंड लास्ट ऑप्शन है गारंटी स्टेटस। तो गारंटी स्टेटस जो है वहां पर मैं ऑप्शन चूज करूंगा। अब अगेन मेरे लोकेटर्स यहाँ हेल्प करेंगे भी क्या ऑप्शंस आ सकती हैं। तो ऑप्शंस वुड बी इफेक्टिव गारंटी वाली ऑप्शन उठाते ही मैं यहाँ डालकर F4 करूंगा, फॉरवर्ड स्क्रीन। तो F4 से मेरे को जितनी इफेक्टिव गारंटीज इस पीरियड अब तक की बैंक में एज ऑन 31/3/23 वो सभी की लिस्ट आएगी और वो मेरी कंटिजेंट लायबिलिटी के साथ मैच हो जानी चाहिए। और यहीं पर अगर मैं एक्सपायर्ड गारंटीज ढूंढ कर निकालूं और वो अगर वैल्यू खड़ी है बैलेंस शीट में कहीं एक्स्ट्रा, तो वो मैं क्लीन करवाऊंगा। सो टेकिंग दिस वे, तो बैंक गारंटी वेरिफिकेशन हम यहीं से करेंगे जिसका अदरवाइज कोई अकाउंट नहीं बनता जब तक इन्वोक ना हो। देन हमारे LFAR में एक पॉइंट कवर हो गया KYC/AML। तो KYC का तो पिछली स्क्रीन पे हमने देख लिया, अब बात आ जाती है AML की। अब मेरे अकाउंट से 2250 रुपए डेबिट हुए और 2500 रुपया क्रेडिट हो गया, तो ये AML में नहीं आ रहा। तो ये आइटम इतनी छोटी, तो AML ऑलवेज विल गो। अगर कोई AML यानी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी करेगा तो वो 2000-5000 के लिए नहीं है, वो कम से कम 10 लाख 25 लाख 50 लाख के लिए होगा। तो मैं इतनी बड़ी एंट्रीज अकाउंट बाय अकाउंट अगर ढूंढने चला जाऊंगा तो कहीं सही भी होंगी कहीं गलत भी होंगी, तो ढूंढूंगा कैसे? हर अकाउंट मेरे को मैं कैसे जानूं किस अकाउंट में हुआ है? सेविंग वाले में बैलेंसेस अगर ढूंढे तो हो सकता है कि 31/3 को बैलेंस जिनमें 500-500 रुपए पड़ा है उनमें करोड़ करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रखी है, तो मेरे पास बेस नहीं बन पाएगा। तो FTI फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्वायरी विल हेल्प मी देयर कि मैं जैसे ही FTI करता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गई ट्रांजेक्शन अमाउंट लो, ट्रांजेक्शन अमाउंट हाई, और उसके पास स्टार्ट डेट एंड डेट।
तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लो में डाल दिया 5 लाख। एज पर दैट, अगर ये जो आप लो और हाई की क्लास फिगर ड्राइव करेंगे, ये आपकी ब्रांच के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी ब्रांच 25 करोड़ की है तो उसमें 5-5 करोड़ की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही हो। बड़ी ट्रांजेक्शन जिनको वो कहेंगे वो तो 10, 25, 10, 15, 20, 25 लाख की बड़ी ट्रांजेक्शन गिनी जाएगी। अगर आपकी ब्रांच ही 500 करोड़ की है तो 2 करोड़ की ट्रांजेक्शन भी छोटी लगने लग जाएगी। सो आप अपनी ब्रांच के साइज के हिसाब से यहाँ लो और हाई डिटरमिन कीजिए। मान लीजिए मैं 10 लाख और हाई में तो 100 करोड़ डाल देता हूँ कि बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन भी कवर हो जाए। और पीरियड डाल दिया 1/4/22 से 31/3/23। तो 10 लाख से बड़ी जितनी ट्रांजैक्शन पिछले एक साल में हुई, डेबिट और क्रेडिट, कोई और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं दे रहा, डेबिट हो या क्रेडिट हो वो यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो मेरे पास एक लिस्ट निकल आई कि इस अकाउंट से 10 लाख रुपए डेबिट हुए, किस डेट को दूसरे किसी अकाउंट में। तो मैं जैसे ही उसे स्टडी किया तो आई केम टू नो के 3 अकाउंट 4 अकाउंट ऐसे हैं जहां पे लगातार फंड्स ऐसे मूव कर रहे हैं, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट, उसी डेट को उसका क्रेडिट उतनी ही अमाउंट से उसके दूसरे के पास पहुंच गया। बाकी ट्रांजेक्शन्स जो है उसमें रूटिंग नहीं होती दिख रही, बट इनमें काइट फ्लाइंग की इंफॉर्मेशन क्लियर दिख रही है। तो वो मेरा AML का एंगल बन गया। अब उन 4 अकाउंट्स के ऊपर मैं प्रॉपर चेकिंग पे लग जाऊंगा। तो FTI विल हेल्प अस कि हम वहां पर AML का एंगल भी क्लियर कर पाए। देन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इंक्वायरी, जो गारंटी स्टेटस वाला पार्ट है, ये यहाँ डॉक्यूमेंट्री में आपके पास बिल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो किस नेचर से किस डेट तक आपने क्या क्या ढूंढना है वो सब यहाँ मिल जाएगा। देन सिक्योरिटी रजिस्टर मेंटेनेंस, मेरे CC अकाउंट्स में बैंक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहा है, तो हर महीने की स्टॉक स्टेटमेंट यहाँ पे अपडेट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल के क्या यहाँ अपडेट हो रही है? अगर यहाँ पे अपडेट हो रही है ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब देखिए 6,93,000 रुपए की स्टॉक स्टेटमेंट, 25% का मार्जिन और 5 लाख की यहाँ पर सीलिंग ऑफ लिमिट लगा रखी है। तो जहां पे लेफ्ट साइड पे देखिए आपको एक ब्लॉक है, यानी कि इस टाइम ये स्टॉक स्टेटमेंट सिलेक्टेड है। आप किसी पर्टिकुलर मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट खोलना चाहेंगे तो कंट्रोल E से आप उसके अंदर चले जाइए, और जैसे ही आप अंदर गए तो ये बता रहा है वही चीज, 5 लाख की लिमिट, वैल्यू, कब स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव हुई, कब रिसीव हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो भी रिमार्क्स हैं, स्टॉक है, पार्टी का नेम, अकाउंट ID सब, और नीचे एक ऑप्शन दे रखी है ऑप्शन। आप यहाँ पे आप एक ऑप्शन एंटर कीजिए। अब आप सिस्टम को क्या बताएंगे कि क्या इंफॉर्मेशन वो आपको और दे। तो यहाँ पे मैं लोकेटर्स की हेल्प लूंगा F2, और ये कुछ तो ऑप्शंस मेरे लिए ऑडिटर की ID के लिए तो है ही नहीं, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, सब्स्टिट्यूशन। मेरा तो इंक्वायर से शुरू होता है, इंक्वायर, चार्ज, फॉलो अप, इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस। तो सिस्टम में क्या इंश्योरेंस की डिटेल सही से डाली गई है कि नहीं, सिस्टम में जो ब्रांच ने इंस्पेक्शन की है उसके रिगार्डिंग क्या कमेंट डाला है। अब हमारी LFAR में जो पिछले 2 साल पहले अमेंड हुई उसमें एक नया पॉइंट और आया हुआ है, तकरीबन LFAR की एंडिंग एरियाज में आता है MIS की ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी और करेक्टनेस के ऊपर हमने कमेंट करना है। तो अगर मेरी फिजिकल स्टॉक स्टेटमेंट का डाटा यहाँ मैच नहीं करता, मेरी फिजिकल इंश्योरेंस का डाटा यहाँ पे मैच नहीं करता या अपडेटेड नहीं है, ब्रांच इंस्पेक्शन तो कर रही है, इंस्पेक्शन के चार्जेस भी लगा रही है, फाइल में इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी रख रखी है, मगर यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो मैं ये चीजें सभी कमेंट करके अपने LFAR के उस पॉइंट के लिए मसौदा तैयार कर सकता हूँ। देन कम्स फॉरेन बिल बैलेंसिंग रिपोर्ट, लोन ओवरड्यू पोजीशन इंक्वायरी, लोन ओवरड्यू पोजीशन इंक्वायरी। तो कितने लोन हमारे ओवर चल रहे हैं, अकाउंट बाय अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट टू, जहां पे भी आपको फ्रॉम अकाउंट और टू अकाउंट की ऑप्शन मिल जाए सर, तो CC का पहला अकाउंट डाल दीजिए फ्रॉम में और लास्ट अकाउंट डाल दीजिए टू में। तो उस पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजेक्शन, उस पर्टिकुलर नेचर की रिपोर्ट आपको सभी अकाउंट्स की एक ही साथ मिल जाएगी। देन कम्स, अब पहले हमने बात कर रही कि RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में बार बार बढ़ाता रहा, तो बैंक में भी चेंज आए होंगे। अब चेंजेस तो हमने ऊपर चेक कर ली INTTI, बट क्या उन चेंजेस के बाद कैलकुलेशन प्रॉपर हुई या नहीं, तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास AINTRPT यानी अकाउंट इंटरेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है। इट इज अ वेरी गुड मेन्यू फॉर चेकिंग द प्रोडक्ट कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, AINTRPT, और ये आपके पास आ गया। अब इसमें भी सबसे बढ़िया ब्यूटी देखिए कि फ्रॉम अकाउंट ID और टू अकाउंट ID की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल।
लीजिए मैंने फ्रॉम में अपना अकाउंट नंबर डाला सीसी का पहला और टू में डाला सीसी का लास्ट, और नीचे फ्रॉम डेट में और टू डेट में कोई 2 महीने डाल दिए, जनवरी से फरवरी, जो मैंने जैसे यहाँ लिख रखा है, जस्ट फॉर द सैंपल पर्पस ओनली। और राइट साइड में वो मेरे से पूछ रहा है सर डेबिट या क्रेडिट, तो मैं सीसी के अकाउंट डाले हैं तो डेबिट इंटरेस्ट होएगा। और उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है सर किस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक करवाना चाहते हैं, टाइप बताइए। N मींस नॉर्मल, P पेनल, A एडिशनल, Q QAS, S स्टॉक, O ओवरड्यू। तो अगर मैं स्पेसिफिक डालूंगा तो सिर्फ उसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी, और अगर मैं कुछ नहीं डालता तो हर इंटरेस्ट की फिगर आएगी। अकाउंट में नॉर्मल कितना लगा, पेनल कितना लगा, ओवरड्यू कितना लगा, स्पेसिफिक अगर नहीं लगा तो मेंशन करेगा कि 0। तो इसमें आपको पर्पस सॉल्व होते दिख रहे हैं कि एक तो मैं कुछ अकाउंट्स का खुद एक्सेल पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर लगाऊंगा, उसको यहाँ पर चेक कर लूंगा सिस्टम और मेरी कैलकुलेशन मैच कर गई या नहीं। अगर नहीं करती तो कहीं मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिस्टम के रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क, और स्पेसिफिकली उन महीनों में जहां पर चेंजेस आए। सेकंड, आप पूछ में बात होती है कि सर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, अकाउंट ओवर चल रहा है, रिन्यूअल नहीं हो रखी, तो क्या ओवर ड्यू या एडिशनल इंटरेस्ट लग रहा है, तो ब्रांच विल से सर ये हमारा सिस्टम करता है, सिस्टम ही लगा देता है, पेनल चार्जेस तो सिस्टम लगा ही रहा। तो क्यों ना इस एलिमेंट, इस ऑप्शन से हम ये वेरीफाई कर लें कि सिस्टम में पेनल इंटरेस्ट कितना लगा उस अकाउंट का। आपने 4 अकाउंट निकाले जहां स्टॉक स्टेटमेंट पिछले 2 महीनों से नहीं आ रही, तो क्या सिस्टम 2 महीनों से पेनल इंटरेस्ट लगा रहा है? तो उन 2 अकाउंट को, उन 4 अकाउंट को यहाँ पर डालिए, 1 बाय 1 डालिए, और चारों अकाउंट में से निकाल कर देख लिए सर पेनल इंटरेस्ट कितना लगा। अगर सिस्टम लिख रहा है कि पेनल इंटरेस्ट हमारा 5,000, 6,000 व्हाटसोएवर अमाउंट लगा, तो दैट मींस यू आर श्योर कि सिस्टम लगा रहा है। अगर पेनल लिख रहा है कि 0, तो बी एंश्योर के सिस्टम कोई पेनल नहीं लगा रहा। आपके पास एक एविडेंस अवेलेबल हो गया, सिस्टम खुद बता रहा है कि लग रहा है या नहीं, तो उस एविडेंस के बेसिस पे आप अपनी इनकम रिकवरी, इनकम लीकेज जरूर डलवाएं। तो ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई, आपने इसको बैकग्राउंड में जाकर प्रोडक्ट कैलकुलेशन दिस वे आपको प्रॉपर चेक करवा दी जाएगी सिस्टम द्वारा। देन आपका LFR में एक पॉइंट है कि आउटस्टैंडिंग एंट्रीज more than 90 days we have to report. more than 90 days entries तो ठीक है, मगर चेक तो मैं सभी करूंगा। सो जितनी ऑफिस अकाउंट्स यानी कि सन्ड्रीज सस्पेंस में MS GOIRP के थ्रू चेक करेंगे कि कितनी एंट्रीज पेंडिंग खड़ी। तो रिपोर्ट टू ब्रांच मैनेजर, आगे GL सब हेड कोड उठा लिया, उसके बाद डेट आ गई 31/3/23। उसके बाद मेरे पास वो पूछ रहा है फिल्टर। अब फिल्टर में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें कि करना क्या है। जो एंट्रीज रिस्पॉन्ड हो चुकी हैं उनको तो मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो ना मेरे GL में स्टैंड कर रही होएगा बैलेंस, और ना ही मेरे को वो नीड होगी। अब जो एंट्रीज अनरिस्पॉन्डेड है वो यहाँ पर कवर होनी चाहिए, उनका बैलेंस मेरे GL में आ रहा होगा। और कुछ एंट्रीज पार्शियली रिस्पॉन्डेड है, तो दैट मींस वो भी यहाँ उठाऊंगा। मान लीजिए ब्रांच के 2 ऑफिसर्स हैं, वो ब्रांच की तरफ से ट्रेनिंग के लिए गए, दोनों ने 5-5 हजार रुपए का ब्रांच से एडवांस लिया। ब्रांच ने सस्पेंस को डेबिट करके, क्योंकि अभी नहीं पता खर्चा कितना होगा, किस नेचर का होगा, तो हेड डेबिट नहीं हो सकता, तो सस्पेंस में डेबिट करके कैश दे दिया गया 5-5 हजार रुपए। 28 तारीख को यानी 31 मार्च 2023 से पहले, साल खत्म होने से पहले दोनों ट्रेनिंग से वापस आ चुके हैं। दोनों में से एक का 4200 रुपए का खर्चा हुआ और एक का 4700 रुपए का। पहले ने हेड वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल बनाई, ट्रेवलिंग, होटल, फूड, अदर, और 800 रुपए साथ में ब्रांच में वापस कर दिए। दूसरे ऑफिसर ने 300 रुपए तो वापस कर दिए, डिटेल अभी देनी है बट। तो दैट मींस दिस एंट्री इज अ पार्शियली रिस्पॉन्डेड। शुरुआत 10,000 से हुई थी, 5300 रुपए 5300 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, 47 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और ये GL में स्टैंड कर रहा है। एक पॉइंट तो ये चेकिंग के लिए जरूरी हो गया, पार्शियली एंड अनरिस्पॉन्डेड। दूसरा पॉइंट ये कि आपकी ब्रांच में अगर वो दोनों ऑफिसर्स व्हाटसोएवर पर्सन, एक हो 2 हो, क्या वो ट्रेनिंग से 31 मार्च से पहले अगर वापस आ चुके हैं, तो दैट मींस 4700 रुपए का जो उन्होंने जवाब नहीं दिया खर्चे का अभी, बट दैट इज प्रैक्टिकली इनकर्ड ऑलरेडी।
तो अगर वो इनकर हो चुका है, बैंक की बैलेंस शीट इस चीज का इंतजार नहीं करेगी कि वो जवाब बनाएंगे तो हम खर्चा डालेंगे। तो आप अगर उन्होंने नहीं डाला तो ये इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज फॉर एमओसी के ब्रांच के एक्सपेंडिचर जो है प्रॉपरली अकाउंट फॉर किए जाए, तो उनसे वो डिटेल ली जाए और उसका प्रॉपर हेड में डेबिट किया जाए, रेदर देन डेबिटेड इनटू द बैलेंस शीट हेड, इट शुड बी P&L हेड डेबिटेड। तो आपको यहां से आप तो एक तो सन्ड्री सस्पेंस, उनकी पेंडिंग एंट्रीज कब से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस कमांड से, इस रिपोर्ट से। सेकेंडली आप यहां से एक एमओसी के लिए एवेन्यू भी ओपन कर सकते हैं। देन कम्स पोस्ट माइग्रेशन वैलिडेशन ऑडिट, जहां पर आप चाहते हैं कि सिर्फ टर्म लोन के, सीसी के, टीडी के, ओडी के, किसी पर्टिकुलर स्कीम के सारे अकाउंट आ जाए किसी पर्टिकुलर डेट पर, यानी 31/3/23 के ऊपर सीसी की लिस्ट आ जाए, तो यहां से आप अलग से भी निकाल सकते हैं। जो काम एसीएस वहां कर रहा था यहाँ पे पीएमवी भी करेगा। बैंक टू बैंक आप ये ध्यान रखिए, जो कमांड हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये केस टू केस, कई बैंक्स में कोई कमांड काम करती है, किसी में कोई करेगी, मगर ओवरऑल ये कहीं ना कहीं वर्किंग कर रही है। देन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट, अकाउंट लेजर की प्रिंटिंग कर सकते हैं आप यहां से, PSP पास शीट प्रिंटिंग। और देन कम्स द इन्वेंटरी स्टेटस मेंटेनेंस। आपको फिजिकली ब्रांच में चेक करवाया गया कि 100 चेकबुक्स पड़ी हैं, पहला हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना रजिस्टर आपको चेक करवाया जिसमें 100 चेकबुक्स आपको दिख रही हैं, तो आपकी एक एलिमेंट तो चेक हो गया। अब मेन एलिमेंट रह गया, क्या ये सिस्टम में भी इतनी है पेंडिंग आ रही है, इतनी बैलेंस, इतनी इन्वेंट्री हो रही है शो। तो ये जो कमांड आपको है इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट, ये आपको क्लास वाइज रिपोर्ट देगी कि कितनी चेकबुक्स पड़ी हैं, 25 वाली कितनी, 50 वाली कितनी, 10 वाली कितनी, 100 वाली कितनी। तो अगर ब्रांच मेरे को दिखा रही है कि मेरे पास 100 चेकबुक्स पड़ी हैं और उसको दिखा दिया, बस सिस्टम बता रहा है कि आपके पास पड़ी 100 ही है सर, बट 25 वाली 2 ज्यादा है और 50 वाली 1 कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में जो चेकबुक एंटर की गई और जो फिजिकली हैंडओवर की गई उसमें वेरिएशन आ गई, और कहीं ना कहीं इस तरह ब्रांच में कुछ चेक्स ज्यादा निकल गए। अब उन चेक्स का क्या किया जाएगा, जो पड़े हैं वो भी पास नहीं होंगे और जो चले गए वो क्या करेंगे। तो दिस वे फिजिकली अगर आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं तो वो प्रॉपर टैली होनी चाहिए, और ये रिपोर्ट आपको वहां पे हेल्प करेगी। ISRA, यहां तक तो मैंने फिनेकल 7 की वो कमांड पर की जो मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स में ऐसा ही रहेंगी जहां पर फिनेकल 7 चल रहा है। नाउ कम्स फिनेकल 10, जो हितेश जी हम बात कर रहे थे कि उसका नया वर्जन अवेलेबल है। ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये आपको IOB में, पॉसिबली शायद IDBI अभी मूव कर गया होगा इसमें, तो आपको कई बैंक्स में ये भी मिलेगा। इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, कमांड का स्टाइल थोड़ा सा बेटर है, आउटपुट थोड़ी और बेटर होती है कई जगह, और कई जगह कमांड थोड़ी चेंज हो जाती है, बट आई हैव कवर्ड ऑल दोस। ओके ओके। सो दिस इज द मेन स्क्रीन जब आप फिनेकल 10 में लॉग इन कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया, ये इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आई कि आपने लास्ट कब लॉगिन किया था, आपका अकाउंट कब बना, लॉगिन फेल कब हुआ। सो दिस बेसिकली दिस 7 to 10 जर्नी इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी फीचर। तो जितनी सिक्योरिटी बढ़ती गई उतना वो एनहेंस सिक्योरिटी के साथ नया फिनेकल बन गया। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपको ऊपर यहाँ पर टॉप पे दिख रहा है, इसमें फिन कोर की ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हमने देखा कोर बैंकिंग और फिनेकल एज अ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे फिन कोर सिलेक्ट करते ही आप इसकी मेन स्क्रीन से आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक मेन्यू ऑप्शन डालने के पार्ट पे आ गए, तो मेन्यू ऑप्शन क्या रहेगी आपकी, वहां पर ACLI था, यहाँ पे HACLINQ हो गया। तो ये आपके पास जब ACLINQ खुला तो वही आपको अकाउंट नंबर मांग रहा है। अब यहाँ पे आपके लोकेटर्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये ऑप्शन गिवन है मैग्नीफायर की, सर्च की, जहां से आप क्लिक करके आप अपना अकाउंट नंबर ढूंढ सकते हैं अगर नहीं जानते। तो अकाउंट नंबर डाल दिया, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दी, ट्रांजैक्शन डेट वैल्यू डेट भी डाल दी, और जैसे ही किया तो ये अकाउंट ओपन हो गया।
और जैसे ही वे अकाउंट ओपन हुआ चीजें वही दिख रही हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का स्टेटस डेट क्या है, अकाउंट का स्टेटस क्या है, सब अवेलेबल हो गया। अब कुछ चीजें जो यहाँ पर बदल गई, आप देखिए हर ट्रांजैक्शन के लेफ्ट साइड में ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक छोटा सा रेड ब्लू बॉक्स जो है वो हर ट्रांजैक्शन के साइड पर है। वैसा ही एक रेड ब्लू बॉक्स ट्रांजैक्शन बैलेंस के साइड पर भी गिवन है। अब इनकी यूजेज ढूंढेंगे। आपके पास ये अकाउंट ओपन हो गया, बट आप चाहते हैं कि ये अकाउंट, ये जो एंट्री हो रखी है, ये एंट्री मैं इसको चेक करूं कि इसका डेबिट का क्रेडिट क्या है और क्रेडिट का डेबिट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक साइड बॉक्स पे क्लिक किया तो इट विल गिव मी दैट कि अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो रखे हैं। अगर क्रेडिट हुए हैं तो भाई डेबिट भी होगा। तो डेबिट किसको किया जब ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो उसको ढूंढने के लिए जैसे वहां पर एक छोटी सी ऑप्शन थी, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दे दिया गया। जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, लिस्ट ऑल पार्ट ट्रांजेक्शंस, जैसे ही लिस्ट ऑल पार्ट ट्रांजेक्शन की तो इट सेज के क्रेडिट तो सर पार्टी का अकाउंट हुआ, डेबिट कैश इन हैंड हुआ। तो डेबिट कैश इन हैंड का मतलब अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया। अगर अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ है, दैट मींस हमें एंट्री की अंडरस्टैंडिंग आ गई, कहीं कुछ और था या नहीं मेरे को सब क्लियर हो गया। बट यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा अच्छा निकल कर आया कि नीचे दिख रखा है एंटर डेबिट 1 क्रेडिट 1। तो एक ही डेबिट था, एक ही क्रेडिट है। अब इस सिनेरियो को समझिए कि अगर मैं किसी सीसी अकाउंट को ओपन किया, उस अकाउंट के अंदर जाकर मैंने ट्रांजैक्शन देखनी शुरू की, तो मेरे को एक ट्रांजैक्शन मिल गई, ये इंटरेस्ट इंस्पेक्शन चार्जेस लगे। तो मैंने इंस्पेक्शन चार्जेस के ऊपर रेड ब्लू बॉक्स पे क्लिक किया, या पुराना फिनेकल है तो कंट्रोल ई कर दिया, लिस्ट ऑल पार्ट ट्रांजैक्शन की। जैसे ही मैंने लिस्ट ऑल पार्ट ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे आया कि डेबिट 25 और क्रेडिट 1। 25 अकाउंट्स को डेबिट करके एक अकाउंट को क्रेडिट किया गया। वो अकाउंट कौन था इंस्पेक्शन चार्जेस। तो 25 अकाउंट के इंस्पेक्शन चार्जेस एक ही बार में चेक हो गए, क्या उनमें लग गए कि नहीं। सर्कुलर से फिगर मैच कर लीजिए, आपको एक आइडिया मिल गया कि इन अकाउंट्स के तो इंस्पेक्शन चार्जेस वेरीफाई हो गए। अब मान लीजिए आपकी ब्रांच में 50 सीसी अकाउंट है, 25 के तो इंस्पेक्शन चार्जेस यही चेक हो गए। अब जो बचे 25 हैं उनमें से एक अकाउंट उठाइए, उसके भी इंस्पेक्शन चार्जेस की एंट्री ढूंढ लीजिए, एक ही ढूंढ लीजिए, उसके अंदर जाकर पार्ट ऑल ट्रांजैक्शन कर दीजिए। तो मान लीजिए वो 28 तारीख थी, अब 29 की मिल गई है, तो 29 तारीख को 10-12 अकाउंट्स में फिर इंस्पेक्शन लग चुके हैं। चलिए 25 और 12 37। सो दिस वे आपकी ब्रांच में चाहे अकाउंट 50 हो चाहे 100, बट आप 4 या 5 अकाउंट चेक करते ही जान जाएंगे कि इंस्पेक्शन चार्जेस किस किस में कितने कितने लगे। सो दिस वे आपकी रेवेन्यू लीकेज की एक्सरसाइज जो घंटों की थी वो मिनटों में खत्म हो गई, और पर्टिकुलर नेचर तो बाहर आ गई कि इंस्पेक्शन चार्जेस चेक हो गए। देन आप प्रोसेसिंग चार्जेस वेरीफाई कर लीजिए। उसके लिए बेटर ऑप्शन, आप कोई एक अकाउंट जो नया ओपन हो रखा है ब्रांच में उसे उठाइए, उसमें शुरू की ही 2-4 तरीकों में एंट्री मिल जाएगी प्रोसेसिंग चार्जेस डेबिट की। और जैसे ही आपने वो प्रोसेसिंग चार्जेस डेबिट की एंट्री उठाई, तो आप ये रेड ब्लू बॉक्स और या पुराने फिनेकल में कंट्रोल ई करें तो आपको दिखेगा डेबिट इस अकाउंट को किया, क्रेडिट इस अकाउंट को किया। और अगर क्रेडिट आपको मिल रहा है तो वो क्रेडिट वाला अकाउंट नंबर ही उठा लीजिए, उसी को ACLI या HACLI में डाल दीजिए। तो इनकम का अकाउंट पूरे साल में कितनी बार डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कब कब हुआ, तो जिस जिस पार्टी के लिए वो क्रेडिट हुआ उतने अकाउंट तो आप अपनी लिस्ट में टिक कर दीजिए कि इनके चार्जेस तो आ गए। और जितने भी आपको और अकाउंट मिले कि ओपन तो हुए मगर प्रोसेसिंग के खाते में नहीं आ रहे, और आपकी रेवेन्यू लीकेज बन जाती है। अपनी शीट बनाइए, ब्रांच को दीजिए और रिकवर कराइए। और मान लीजिए कि अगर हम हर ऑडिटर अपनी अपनी ब्रांच में साइज के अकॉर्डिंगली 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रेवेन्यू लीकेज का टारगेट लेकर जाएगा और रिकवर करवा देगा, तो ये लिमिट आज जो 70% हुई है अगले साल बढ़ भी जाएगी। अब वो जो छोटा सा बॉक्स अकाउंट बैलेंस के साथ में बना हुआ था, ये वही काम करेगा जो फिनेकल 7 में ACCBAL कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्लियर बैलेंस आपको अवेलेबल है 2,12,000 और लिमिट है 50,000। तो राइट साइड नीचे इफेक्टिव बैलेंस आ गया 2,62,000।
सो दैट मीन्स वो डीपी और लिमिट की कैलकुलेशन, उसमें वेरिएशन कम ज्यादा, मिनिमम विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट, ये अगेन आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स में खुद ब खुद सैंपल बनाकर चेक कर सकते हैं। देन जो लिमिट हिस्ट्री इंक्वायरी हमने वहां ढूंढी थी, वही लिमिट हिस्ट्री इंक्वायरी यहाँ HACLHM से बन गई है। तो ये आपके पास आ गया कब से कब तक के लिए लिमिट रिन्यू होती गई, इवन सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या रही, डॉक्यूमेंट की ड्यू डेट क्या है, जहां पे एक दो चीजें और एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गई आपको। अकाउंट लियन इंक्वायरी, ALM HALM हो गया। अकाउंट टर्नओवर इंक्वायरी एक जनरल स्टैंडर्ड सेट है कि लिमिट के 5 टाइम्स सेल होनी चाहिए। लिमिट का 5 टाइम सेल, अगर मान लीजिए प्रूडेंटली 4 टाइम्स भी पार्टी टर्नओवर दिखा देती है, 4 टाइम्स का मीन लिमिट के क्वार्टर में लिमिट के जितनी अमाउंट क्रेडिट होगी। अगर क्वार्टर में लिमिट जितनी अमाउंट क्रेडिट हुई तो साल में लिमिट का 4 टाइम्स आ जाएगा। सो HATOR विल हेल्प यू कि आप यहाँ पर अगेन यहाँ पे आप एक बढ़िया ऑप्शन मिल रही है फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, तो जहां पे ये ऑप्शन मिल जाए उसको तो उठा ही लीजिए। तो सीसी का पहला अकाउंट और सीसी का लास्ट अकाउंट यहाँ पे भर दीजिए, आपको जितने भी सीसी अकाउंट है उन सबकी टर्नओवर आ जाएगी। लिमिट के साथ टर्नओवर की मल्टीप्लिकेशन का एक्सेल फॉर्मूला लगा दीजिए, जहां पर 4 से कम की फिगर बन रही है उसमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और जहां पर कहीं 1-1.5 ही रह गया उसमें तो स्पेसिफिक चेकिंग पे लग जाइए। सो दिस विल हेल्प यू कि आप प्रॉपरली लो टर्नओवर के अकाउंट्स निकाल पाएंगे, और एक पर्टिकुलर इशू जो एड्रेस किया जाएगा ऑल अकाउंट्स में वो एक ही साथ कर लिया जाएगा, एक एक में की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस हमने INTTI में देखे थे, वही इंटरेस्ट रेट चेंजेस हम HAINTTMI में देखेंगे। हमारी LFAR का एक और पॉइंट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट वेदर जनरेटेड बाय द ब्रांच एंड वेरीफाइड बाय द ब्रांच, क्या ये चेक हो पाया या नहीं। जो एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स ब्रांच ने निकालकर आपको दिखाई कि हमने सर ये देखिए हमने साइन कर रखे हैं, इट इज वेरीफाइड, तो क्या वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट कंप्लीट सेंस में आपको दिखा दी गई है। तो कुछ एक्सेप्शनल रिपोर्ट सैंपल बेसिस पे आप सिस्टम और उसको एक्सेप्शनल रिपोर्ट से कंपेयर करके कंफर्म कर सकते हैं या वेदर यू हैव गॉट द एग्जैक्ट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एज शोन बाय द ब्रांच। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑडिटर्स हैं उनके लिए रिपोर्ट मेन्यू एक स्पेसिफिक ऑप्शन अवेलेबल है, बॉब मेन्यू। तो बॉब मेन्यू पे क्लिक करती है, वैसे ही देखिए आपके पास बड़े क्लियर इंफॉर्मेशन, वही फिनेकल सिस्टम है, कोड उठाइए और उसके सामने का टाइप ऑफ रिपोर्ट देख लीजिए। टाइप ऑफ रिपोर्ट के बाद आपके पास डिटेल ऑफ रिपोर्ट, और उसके बाद आप HPR मेन्यू पर भेज दीजिए, तो रिपोर्ट यहां से आपके पास फिर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये HPR में ये लीजिए आपकी रिपोर्ट चली गई, इसको आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्वायरी AML के एंगल से हमने फिर फिनेकल 7 में देखी थी, वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट FTR बनकर फिनेकल 10 में पहुंच गई। यहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट लो, ट्रांजैक्शन अमाउंट हाई अवेलेबल है, डेट दे दीजिए और उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन फिल्टर करते निकाल लीजिए। HGI बन गया, ISRA HISRA बन गया, इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट्स। और कुछ कमांड्स अपार्ट फ्रॉम दीज आई विल ऑल्सो, मैं हितेश जी से शेयर कर दूंगा, एक PDF और अवेलेबल है जिसमें काफी कमांड्स अवेलेबल है, मैं उनको शेयर कर दूंगा, ही विल शेयर ऑन द चैनल सो डेट ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स तक ये पहुंचे। बेटर रिजल्ट्स विद लेसर ऑफ द इनपुट वी विल गेट फ्रॉम दिस। लॉकर रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, पैन नॉट अवेलेबल, पेंडिंग सिग्नेचर। अब हमारी LFAR में एक पॉइंट और इस जो नई LFAR है उसमें जुड़ा है कि ब्रांच में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फिनेकल के साथ लिंक्ड नहीं है। जो मैं अपने टाइम पे देख चुका हूं कि सिग्नेचर स्कैनिंग कभी एक टाइम पे ऐसा रहा है, आज की डेट में भी कुछ बैंक्स में ऐसा हो सकता है ब्रांचेस में मिल जाए कि सिग्नेचर स्कैनिंग किसी पर्टिकुलर किसी और सॉफ्टवेयर पर की जाती है और उसके बाद उसको फिनेकल पे लोड कर दिया जाता है। और अगर ऐसा कोई चीज हो रही है तो एक तो LFAR का वो पॉइंट कहीं ना कहीं कवर हो जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर नॉन
इंटीग्रेटेड विद फिनेकल क्या ब्रांच में चल रहा है। और दूसरा, अगर वो सिग्नेचर स्कैनिंग ही है तो ये ना हो कि सिग्नेचर स्कैनिंग हो ना रखी हो और ब्रांच में एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस हो रही, तो कितने दिन से सिग्नेचर पेंडिंग है ये आपको रिपोर्ट हेल्प कर देगी। सिंपली सेट आईडी और फ्रॉम डेट टू डेट डाल दीजिए, 1/4/22 से 31/3/23। इस पीरियड में जितने भी सिग्नेचर स्कैनिंग होने चाहिए थे क्या वो हो गए कि नहीं, तो जितने पेंडिंग है वो बाहर निकल आए। और अगर सिग्नेचर कहीं स्कैनिंग पेंडिंग है तो ज्यादा से ज्यादा वो बीसी के अकाउंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अकाउंट हो सकते हैं, नॉर्मल केसेस में पेंडेंसी नहीं मिलनी चाहिए। देन फैसिलिटी वाइज एक्सेस और क्रेडिट रिपोर्ट, और यहां तक फिनेकल 7 और 10 की मैंने वो कमांड्स इकट्ठी कर ली जिनसे हम एटलीस्ट अपने स्टैट ऑडिट के टाइम पे ब्रांच के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम से कम रखेंगे। जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा हम इसको ब्रांच, जिसको कहते हैं बाईपास ब्रांच ऑडिट में ले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारी आईडी में, हमारे जो आईडी दी जाएगी उसी में हम काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। देन कम्स बैंक सॉफ्टवेयर, जिनको कुछ बैंकों का नाम मैंने दिया जो यूज करते हैं। सो दिस इज द बैंक स्क्रीन। यहाँ आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला, हो गया। अनलाइक फिनेकल, जब आप बैंक्स में वर्किंग कर रहे हैं तो आपको कमांड याद करने की जरूरत कम से कम रहेगी। सो लेजर, सीसीओडी, सेविंग और करंट, यानी कि डिमांड बेस्ड जितने भी अकाउंट्स हैं, आइदर इट इज डिमांड डिपॉजिट और डिमांड लायबिलिटी और डिमांड एसेट, तो यहाँ पे आपने जैसे लॉगिन किया तो यहाँ ऊपर बॉक्स में आप भरेंगे 450, तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अगर नहीं पता तो यही सर्च हो जाएगी। तो डेट डाल दीजिए फ्रॉम और टू, इस अकाउंट में इस डेट से इस डेट के बीच में जितनी ट्रांजैक्शन हो रखी हैं आपने वो यहाँ पर व्यू कर लेना। यहाँ पर ही आपका कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द एएमएल कवर किया जा सकता है कि अगर मैं ग्रेटर देन और लेस देन भी डाल दूं तो अकाउंट टर्नओवर इंक्वायरी भी यही पूरी हो जाएगी। अगर मैं क्रेडिट डेबिट सबमिशन को यस कर दूं तो ट्रांजैक्शन ऑफ दिस टाइप, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाएं, यानी कि 2 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट, 1000 डेबिट, 2000 क्रेडिट, सिर्फ अमाउंट आ रही है उसकी नरेशन नहीं आ रही, तो ऑल फाइनेंशियल में जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि नरेशन भी आए तो ड्रॉप डाउन से इस बॉक्स को मैं ब्लैंक कर दूंगा, नील कर दूंगा, खाली रखूंगा, और मेरे पास ट्रांजैक्शन के बाद 1 या 2 लाइन में उसकी नरेशन भी साथ के साथ ही आती रहेगी। और जितनी भी मेरे पास ये बॉक्स है ये ट्रांजैक्शन में हेल्प रहेगा। डिमांड बेस्ड अकाउंट्स के लिए 450 और टर्म बेस्ड अकाउंट्स के लिए 10,450, और जो हमने सन्ड्री सस्पेंस के अकाउंट का जिक्र किया था उसके लिए 20,450। सो उससे हमारे सन्ड्री सस्पेंस ओपन हो जाएंगे, तो कब कब बैलेंस बनाने में किस किस एंट्री ने कितना कितना रोल अदा किया वो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे पास राइट साइड में एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये ये पार्ट ऑफ द स्क्रीन कवर कर रही है, ये जो कॉलम है इसमें अकाउंट इंक्वायरी में डिपॉजिट में कुछ इंक्वायरीज हैं, लोन में कुछ इंक्वायरीज हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया अनलाइक फिनेकल, यहाँ पे आपको कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने चीजें हैं, बस आपको उसमें से ज्यादा इवॉल्व करके अपना इंफॉर्मेशन डेटा से निकालना पड़ेगा। तो अकाउंट आईडी डाली, लॉन्ग इंक्वायरी पे क्लिक किया तो कुछ लेटेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो हो रखी हैं वो आ गई, और उसके अतिरिक्त आपके पास बैलेंस, ओपनिंग डेट, इंटरेस्ट रेट, पार्टी का नेम, उनका एड्रेस, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट कब से कब तक है, अवेलेबल बैलेंस कितना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास कवर हो गई। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको लॉन्ग इंक्वायरी में मिल गई, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी रहेंगी जो आपको शॉर्ट इंक्वायरी से मिल जाएंगी, वो भी यही आपके पास डिपॉजिट शॉर्ट इंक्वायरी या लोन्स में शॉर्ट इंक्वायरी। जो काम आपके फिनेकल में मेन स्क्रीन के दो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कर रहा था कि मेन्यू, सब मेन्यू और मेन्यू ऑप्शन, यहाँ पे वही काम ये कोलैप्स स्क्रीन कर रही है जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दी गई, डायरेक्ट आपको स्क्रीन तक ले जाया जाएगा। देन कम्स द रिपोर्ट्स। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑडिटर हैं
तो सर आपका बैंक्स लॉगिन करने के अंदर आपको ये जो कोलैप्स वाली स्क्रीन थी उसी के अंदर रिपोर्ट मेन्यू भी अवेलेबल रहेगा और उसी में आपकी सारी रिपोर्ट्स होंगी। और अगर आप सेंट्रल बैंक के ऑडिटर हैं तो आपको लॉगिन की भी जरूरत नहीं है। आपकी ब्रांच के माई पीसी के सी ड्राइव में रिपोर्ट्स का एक फोल्डर बना है और वहीं से आपको मिलती जाएगी। और अगर कहीं आप इंडियन बैंक या स्टेट बैंक के ऑडिटर हैं तो उस केस में आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बैंक्स में ना होकर रिपोर्ट्स ऑनलाइन फोल्डर में है, और जहां पे भी आप जाएंगे आपको जैसे ये वैरायटी दिख रही है रिपोर्ट्स के अंदर भी सब मेन्यूज खुद ब खुद सिस्टम ही बना रहा है। सो कंपैरेटिवली फिनेकल से इसमें आने तक आपको कमांड कम से कम हो गई और रूट्स सबसे ज्यादा से ज्यादा मिल गए, बट स्टिल इंटरफेस, यूजेबिलिटी और बाकी चीजों के हिसाब से हर बैंक अपने हिसाब से बेस्ट ही सॉफ्टवेयर लगा रहा है। देन कम्स उत्कर्ष, जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर केनरा बैंक यूज कर रहा है। सो जहां पे आपकी ये मेन बायोमेट्रिक लॉगिन स्क्रीन आई, उसके बाद आपने यूजर आईडी डाल के एप्लीकेशंस में गए, उत्कर्ष का पोर्टल लॉगिन, और उसके बाद उत्कर्ष का लॉगिन आईडी पासवर्ड बताया। सो ये आपके पास होम स्क्रीन ओपन हो गई। इस होम स्क्रीन में आपके पास ऊपर यहाँ पर एक टास्क कोड सर्च के नाम पर बॉक्स अवेलेबल है, और यहीं पर आप जैसे ही पाक कमांड के रिगार्डिंग कुछ भी डालने की कोशिश करेंगे वो आपको लिस्ट दे देगा। सो इट इज समहाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिनेकल एंड बैंक्स कि आपको कमांड भी मिल रही है, स्टिल आप कुछ ना कुछ एडलेस भी उसमें ढूंढ पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको आरडी का भी डाटा मिल रहा है, यहाँ पे आपको कासा भी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर कोड भी आ रहे हैं। सो टेकिंग ऑल थिंग दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नेचर, एक पर्टिकुलर हेड के बाद ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। CHM से ये आ गया, तो मैं आपको कुछ कमांड देता जा रहा हूँ साथ साथ। GLM04 से GL ट्रांजेक्शंस, तो आपको GL की कैश अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कैश डिपॉजिट करवाया, कैश विड्रॉ हो गया, तो ये सारी ट्रांजेक्शंस आपको यहाँ GL के अकाउंट में मिलेंगे। CH03 से स्टेटमेंट की इंक्वायरी आ जाएगी, कासा स्टेटमेंट इंक्वायरी, ये उसकी स्टेटमेंट ओपन हो गई। और जहां पे आप क्लिक टू डिस्प्ले पे क्लिक करके इसका डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट ढूंढ सकते हैं। और ये डेबिट है या क्रेडिट, ये यहाँ पे थोड़ा सा हर एक में इंटरफेस चेंज है, एज लाइक इन मैनी ऑफ आवर एप्स एक जैसी हैं मगर चेंज है। लोन ट्रांजेक्शन इंक्वायरी, तो यहाँ पे आपको लोन ट्रांजेक्शन की डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, कितनी डेबिट हुए, चार्जेस लग गए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आ गई, उसके बाद ब्याज इंटरेस्ट लग गया, तो ऑल थिंग्स कवर ओवर हियर। जो केवाईसी का एंगल हम वहां पे कवर कर रहे थे, यहाँ पे 7004 से कस्टमर प्रोफाइल आपको मिल गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप बढ़िया नोट कीजिए जो और किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज ये देखिए, आप एक ही टाइम पर मल्टीपल कमांड्स टैब की फॉर्म में ओपन कर रहे हैं। दैट मीन्स किसी अकाउंट के केस में आपने कस्टमर बेस इंक्वायरी कर ली, कि उसी अकाउंट का हमने साथ में लेजर भी खोल लिया, उसी अकाउंट का हमने साथ में अकाउंट इंक्वायरी भी डाल दी, तो उसका केवाईसी भी दिख गया, लेजर इंक्वायरी भी दिख गया, स्कीम कोड भी दिख गया। तो एक ही अकाउंट 3 टैब्स में ओपन हो सकता है, और ये इसी में ही इंफॉर्मेशन एक अवेलेबल है। लिमिट हिस्ट्री इंक्वायरी, तो कब से कब तक के लिए हिस्ट्री लिमिट शुरू हुई थी, अब की डेट में कहां पर पहुंच रखी है, कितनी ड्राइंग पर है, कितनी लिमिट दे रखी है, इंटरेस्ट का FD फ्लैग क्या, जो भी इंफॉर्मेशन उसको लिमिट मास्टर में अवेलेबल है वो आपको देता जा रहा है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे हैं साल दौरान, तो कब कब इंटरेस्ट इंडेक्स चेंज होता रहा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आए, रेट एंड चेंज की इंक्वायरी आप यहाँ पर डालिए कब से कब तक हुए, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और रही बात कैनरा बैंक के सिस्टम में आपने MIS लॉगिन स्क्रीन को चेक करने की, तो इसमें आपको रिपोर्ट्स अलग से एक MIS है उसमें मिलेंगी। तो जैसे ही आपने उसका लॉगिन डाला तो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप रिपोर्ट को सर्च करें, दूसरा उन्होंने रिपोर्ट्स के मॉड्यूल बनाकर रख दिए हैं आपके सामने कि बिजनेस पोजीशन में बैलेंस शीट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन रहेगी, डिपॉजिट्स में सभी तरह के डिपॉजिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, एडवांसेस की इंफॉर्मेशन है, SMA और NPA की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे ही मैंने किसी एक मॉड्यूल को उठाया, से एडवांसेस मॉड्यूल को,
तो उसने देखिए लोन्स अकाउंट विद इन 1 मंथ ऑफ सेक्शन, लोन्स क्लोज विद इन 1 मंथ ऑफ सैंक्शन, सेक्टर वाइज एडवांसेस वेरिएशन रिपोर्ट, अकाउंट्स ओपन क्लोज रिपोर्ट। तो उसने कुछ रिपोर्ट्स डायरेक्ट दे दी, ओवरऑल बैलेंसिंग लिस्ट, सेक्टोरल डिफरेंस बेसिस पर रिपोर्ट्स की सेगमेंटेशन कर दी, रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट अलग कर दी, रिटेल का पोर्टफोलियो अलग कर दिया, हाउसकीपिंग अलग ले गया। तो ये सेल्फ सिस्टम ने खुद ही सेल्फ बाइफर्केशन कर दी रिपोर्ट्स की। जो चीज हम फिनेकल में रिपोर्ट के अंदर ढूंढते थे, यहाँ पे उन्होंने सामने ही रख दिया सारा कुछ। और जैसे ही मैंने एक आधी रिपोर्ट उठाई तो वो डेट, उसके टाइप, उसकी सेक्टोरल बाइफर्केशन, तो दैट मींस फिल्टरिंग और सॉर्टिंग का काम भी मैं यही कर रहा हूं। और ये एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रेजेंट हो गई कि कौन सा अकाउंट था, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। तो ये पूरी डिटेल आपके पास। So through this PPT, this information, I have tried to cover all the existing banking software prevalent in the market. 7, Finacle 7, Finacle 10, banks और उत्कर्ष। उद्देश्य हमारा सर एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ऑडिट, कम से कम वक्त लगाए हम कर पाए, सो डेट बेटर हमारा टाइम यूटिलाइज हो हमारी कंपाइलेशन में। ज्यादा से ज्यादा हमारा वक्त इस चीज पर लगे कि हम अपनी रिपोर्ट को कितना बेटर प्रेजेंट कर पाते हैं, ब्रांच को कम से कम इंटरफेरेंस देते हुए और अपने काम को बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस के साथ करते हुए। सो आई एक्सपेक्ट कि दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प अस ऑल कि हम अच्छा ऑडिट कर पाए, उस ऑडिट में हम ऐसी ऐसी चीजें निकाल पाए, LFAR की जो रिवाइज्ड वर्जन है उसको बेटर से एड्रेस कर पाए, सो डेट ये जो हमारी 70 की लिमिट है वो कल को बढ़ती हुई आगे की तरफ जाए, ना कि घटती हुई पीछे की तरफ आए। बिल्कुल ठीक तो बात है अभी, बिल्कुल सही बात है अभिजीत जी आपकी। आपने एक तरीका बताया भी कि हम अगर ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कम से कम टाइम में करके देंगे तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस द ऑडिट। वो उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे फिर। हितेश जी, एक ये है कि हमारा जो मतलब जब से हम ऑडिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक ग्रीवेंस बैंक के साथ रहता है कि वो टाइम बाउंड हो जाती है, एक्सरसाइज होनी चाहिए। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट के वो टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए, ओपन कर दें, बट टाइम बाउंड मींस के कम से कम इतना टाइम हो कि अच्छा ऑडिट करें। और अगर फिर भी टाइम बाउंड है तो वी हैव टू गियर अप फॉर द एफिशिएंसी। डेफिनेटली सर। मैं चलो क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मैं आपसे वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने जो सभी सॉफ्टवेयर के ऊपर डेलीब्रेशन की बहुत अच्छी हर चीज को बड़ी डिटेल में बताया, तो इनमें से तीनों सॉफ्टवेयर में जो 3-4 सॉफ्टवेयर है फिनेक्टर 7 और 11 को मिला के, तो विच वन इज बेस्ट? सर जितनी अभी तक मैं वर्किंग कर चुका हूं, आई फाइंड फिनेकल स्टिल द बेस्ट। ओके। चाहे मुझे उसमें कमांड को याद भी करना पड़ रहा है, चाहे मुझे उसके इंटरफेस में डायरेक्टली हर चीज सामने नहीं मिल रही, बट स्टिल आई फाइंड, बिकॉज उसका जो रिपोर्टिंग पैटर्न है ना सर, बिकॉज एज एन ऑडिटर मेरे को ट्रांजेक्शन नहीं डालनी, तो मेरे को ट्रांजेक्शन तो नहीं डालनी, एज एन ऑडिटर आई वांट बेटर रिपोर्ट फॉर्मेशन। सही तो जितनी अच्छी रिपोर्टिंग मेरे को वहां मिल रही है, अभी बाकियों में नहीं उतना अच्छा मिल रहा, बट स्टिल ये है कि हर बैंक अपने लेवल पे तो बेस्ट ही देख कर रहा है। सो जो IT टीम बैकएंड पे इसके ऊपर काम कर रही होगी, दे मस्ट हैव डन बेस्ट फॉर देयर ओन। बट ये है कि जो भी हो, मेरी कोशिश यही रही कि सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एफिशिएंसी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही रहनी चाहिए। सही है। अच्छा, कुछ अभी क्वेश्चन आंसर आप ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। एक जैसे उन्होंने पूछा कि अगर सब जैसे किसी क्वेरी है कि जैसे सभी अकाउंट्स में नॉर्मली बैंक फीड करता है कि बेस रेट प्लस इतना मार्जिन हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यस यस सर। अगर किसी केस में वहां पे फ्लैट, आज मान लीजिए बेस रेट 7% है और सैंक्शन हो गया लोन बेस रेट प्लस 3% 10% के हिसाब से, ठीक है, तो यस सर। वहां पे फीड करते हुए या सैंक्शन लेटर बनाते हुए बेस रेट प्लस 3 लिखने की बजाय 7% प्लस 3% लिखा गया, मतलब, और फीड भी गलती से 10% हो गया, एग्जैक्टली। तो क्या हम वो चीज इन सॉफ्टवेयर में पकड़ सकते हैं? यस सर, आपने जब शुरू में मैंने बताया था, मैं चैट रीड करने आ गया था, वैसे मैं एक बार दोबारा उसको चला देता हूँ। चैट में तो पहले आपकी प्रेज लिखी है जिन्होंने कि बहुत अच्छा सेशन दिया। सर ये तो एक्चुअली क्या है कि इन सभी का मोटिवेशन है, जो मैं कोशिश करता हूँ हर बार एक दो चीजें और बढ़ाता जाऊं, इम्प्रूव करता जाऊं। मेरा जी बधावन जी ने लिखा जी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली सर, पीपीटी तो हम आपको भेज ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और
तो जैसे हमने सर यहाँ पे वर्किंग की थी ना, हाँ जी। ये रहा ACI। ACI में यहाँ पे जब हम ऑप्शन डालने जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को अवेलेबल है 0 में जनरल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और जनरल अकाउंट की इंफॉर्मेशन ये मेरे सामने ओपन हो गई। तो इसमें मेंशन्ड है सर अकाउंट पैगिंग में है या नहीं। अगर पैगिंग रिव्यू डेट है तो तब भी दी जाए, इंटरेस्ट रेट का कोड क्या डाला गया है, और प्लस मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं या नहीं। तो इन सभी चीजों से, और नेट इंटरेस्ट रेट तो नीचे आ रखा है। नहीं तो सर, ये इनसे तो मेरे को ये स्क्रीन मेरे को हेल्प करने वाली है ये निकालने के लिए भी क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो लिंकिंग के साथ चल रहा है या वो डिस्क्रीट ऑप्शन है। ये तो सो सर दिस एक एक ये तो एक एक अकाउंट चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसी कमांड है जिससे पता लग जाए कि बेस रेट प्लस इंटरेस्ट नहीं डाला उसमें? सर ऐसा है कि सिस्टम अगर वर्क करता है वो सिस्टम के साथ करता है। तो इसका मतलब अगर उन्होंने डालने के टाइम पे एक में 7.3 की है, 7+3 की BR बेस रेट +3 की बजाय 7+3 किया है, तो करने वाले ने सब में यही किया होगा। ओके। तो मेरा सैंपल एक ही जैसा होगा। अगर ट्रेंड में गलती मिलेगी तो सबकी मिलेगी, और अगर ठीक जाता जाएगा तो सब में ठीक जाएगा। राइट सर। एक और बात, आपने बैंक्स एक सॉफ्टवेयर जैसे थर्ड सॉफ्टवेयर आपने लिया था बैंक्स का, लास्ट यस उत्कर्ष लिया, थर्ड बैंक्स का था। तो बैंक्स यस में आपने जो कमांड दी वो एक ही पीप स्लाइड में थी, मतलब वो उतनी ही स्लाइड्स उतनी ही कमांड्स हैं या और कमांड्स भी हैं उसके लिए? उसमें जैसे मैंने सर बताया कि राइट साइड में कोलैप्स स्क्रीन दे रखी है। हाँ जी हाँ। तो पर्पसफुली ये है कि हम चीजों को समझ जाएं। उसके बाद तो फिर अगर मान लीजिए मैं गाड़ी को चलाना शुरू कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो जैसे एक पहला या दूसरा गियर सीख गया तो तीसरे में जाना या चौथे में जाना या पांचवें में जाना, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ थिंग्स। तो जैसे राइट। कोलैप्स स्क्रीन में अवेलेबल है शॉर्ट इंक्वायरी, लॉन्ग इंक्वायरी, हिस्ट्री इंक्वायरी। तो इसमें इंटरेस्ट रेट्स हाँ में तो हाँ। मतलब सर अगर हम स्टैट ऑडिट में जा ही रहे हैं, मान लीजिए मैंने 1 घंटा स्टैट ऑडिट में गया एज एन ऑडिटर, एज अ मेरा जो असिस्टेंट है वो भी हो जाए, तो 1 घंटा मैंने और कुछ नहीं, मैंने वो सारी एक एक मॉड्यूल को खोल के चेक किया। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं बता रहा या बता पाया उससे ज्यादा वहां पर निकल आए। ठीक मैं है। भी हर बार जाता हूँ सर कुछ नया निकालने के लिए। नहीं सही है, आपने बताया भी कि बैंक्स में कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेटरी है। यस 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 यस, तो ठीक सभी है चीजें ठीक। सामने दे रखी हैं। राइट सो राइट जितना राइट। हम एक्सप्लोर करेंगे उतना इवॉल्व कर जाएंगे। ठीक है सर, एक क्वेरी आई है फ्रॉम आईफोन। सर कैन यू प्लीज शेयर दैट टूल्स अगेन? वो शायद जो आपने सबसे पहले टूल्स शेयर किए थे ना, यस यस यस। तो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो वो तो आप पीपीटी वैसे भी शेयर हाँ करेंगे वो इनके साथ। पीपीटी जाएगी सर, उसी में ही कवर हो जाएंगे। हाँ जी। और ही एक मस्ट बी आस्किंग अबाउट दीज टूल्स। यस 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 दीज टूल्स, बेसिकली ये ये जो वाले। स्टार्टर, लोकेटर, हाँ पिकर, जी ये हाँ। मेरे ही दिए गए नाम है। हाँ मैंने इसलिए दिया है ताकि मेरे माइंड में, या हम जब बात आपस में करें, जब आप भी देखें तो माइंड में वो चीजें छप जाएं कि ये काम क्या करती है। सही, अदरवाइज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। यस यस यस, टाइम टाइम के साथ मैं भूल जाऊंगा कंट्रोल ई क्या करता है, मगर मैं ड्रिलर याद रखूंगा तो उसका मीनिंग मेरे को समझ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वेरी है फ्रॉम राजीव धावन जी। व्हाट इज बैंक ऑफ बड़ौदा मेन्यू रिपोर्ट फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा? व्हाट इज बीओबी मेन्यू रिपोर्ट फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा? सर बैंक ऑफ बड़ौदा के जो में जो रिपोर्ट्स निकलती हैं वो बॉब आरपीटी या बॉब आरईपी से नहीं निकलती, जो मैंने पहले एमआईएस से डिस्कस किया था। तो उसमें स्पेसिफिक मेन्यू गिवन है बॉब मेन्यू। तो उसमें आप जाइए तो वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल रहेंगी। एज लाइक वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। काफी हद तक 7 से 10 में आते आते उन्होंने उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो कर दिया। ठीक है जी। काफी चीजें उसमें उसमें वहीं पर ही अवेलेबल हो जाती हैं। लीजिए, तो यहीं से अब पहले वाले में ढूंढना पड़ता था ज्यादा, अब इसमें तो सीधा ही आ गया क्लियरिंग कंप्लायंस डेली। अब डेली रिपोर्ट में जाएंगे तो डेली सीसी की रिपोर्ट अवेलेबल है, फॉरेक्स की रिपोर्ट आपके पास अलग से मिल गई। ठीक है जी। तो मिसलेनियस और रिपोर्ट्स जो कहीं किसी फिटिंग नहीं होती तो यहाँ एरर और वार्निंग रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स की कैटेगरी तो बहुत अच्छी है सर, ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे। राइट सर। अभी ना एक क्वेरी और आई है, उससे पहले सर मैं सभी से, जिन जिनको पीपीटी चाहिए काइंडली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई या कुछ भी ड्रॉप कर दीजिए। माई नंबर इज 9814925846। तो मैं उन सबको पीपीटी भेज दूंगा, क्योंकि अदरवाइज डिटेल सबकी आपकी चाहिए होगी, कहाँ कहाँ किस किस मोबाइल पे हम पीपीटी भेजें थ्रू व्हाट्सएप। तो आई एम रिपीटिंग माई नंबर 9814925846, 9814925846। तो आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है सर दीपक जी की तरफ से।
कैन यू गिव, ये सर वैसे हम ये वाला पॉइंट पिछले अपने वेबिनार में कवर कर चुके हैं, बट इवन देन अवनीत जी, कैन यू गिव सम गाइडेंस फॉर एग्रीकल्चर एडवांस इन ब्रीफ विच आर टू बी चेक्ड थ्रू सिस्टम? सर एग्रीकल्चर एडवांस में ना मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये जो हमने कमांड पे काम किया था ना, ACS, ये अब आपको एग्रीकल्चर के सारे एडवांसेस यहीं से लिस्ट मिल जाएगी। तो GL सब हेड कोड आप एडवांस का उठा लीजिए, और यहाँ पे उनका अकाउंट स्टेटस ऑप्शन अवेलेबल है कि अकाउंट कहीं SMA या किसी के जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट एरिया में तो नहीं चल रहा, तो यहाँ पे कोड और स्टेटस के साथ उठा सकते हैं। जो नया फिनेकल 10 अवेलेबल है उसमें एक एडिशनल फीचर यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है कि आप GL सब हेड कोड के साथ यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दे रखी है लेजर इंक्वायरी। तो जो लिस्ट निकलेंगे उनकी साथ साथ लेजर इंक्वायरी खुलती जाएगी, और आपको वापस शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। लिस्ट पे रुकेगा, फिर अगला अकाउंट उठा लीजिए, फिर लिस्ट पे आएगा, फिर अगला उठा लीजिए। तो जैसे हम मानते हैं कि 3 लाख से तक के अकाउंट्स पे तो चार्जेस वेव है, 3 से ऊपर जब जाएगा तभी चार्जेस लगने शुरू होंगे। और जो कुछ एक कैटेगरी बैंक्स पर यूज कर रहे हैं, किसान गोल्ड कार्ड, तो जो KCC होल्डर्स उनके साथ कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से जुड़े हैं और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक का अकाउंट उन्होंने इतनी देर से अच्छा चलाया है, तो उनको एक गोल्ड कार्ड दे देते हैं। अकाउंट का एक स्कीम कोड है, तो उसकी लेजर में तो पहले रुपए से ही आपको चार्जेस मिलने वाले हैं। तो उस केस में गोल्ड कार्ड का आप GL कोड उठा लीजिए, उसकी डेट देकर, और नीचे आप उठा लीजिए उनके लेजर इंक्वायरी। तो उनकी सभी की लेजर इंक्वायरी 1 बाय 1 वो आपको खोलकर देता रहेगा, और वापस आपको फिर ला देगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे, अगला अकाउंट उठा लीजिए। सो दिस वे आप चेक कर सकते हैं उस अकाउंट में कितनी रूटिंग हुई, कितना क्रेडिट डेबिट सबमिशन रहा, एक साल में क्या वो रोटेशन कर पाया या नहीं। तो दिस ACS कमांड विल हेल्प। जो 7 में ACS है और फिनेकल 10 में HACS हो जाएगी। सर ये बैंक से भी बता दीजिए कैसे होगा, ये वाला एग्रीकल्चर वाला सही बैंक में कैसे होगा? अगेन सर बैंक्स में वही रहेगा आपका 450 और 10 450। अगर आप एग्री टर्म लोन उठा रहे हैं तो वहां, और उसमें भी अगेन वहीं पर जाते हैं सर, आपको जो रोटेशन वाला पार्ट है वो चीजें वहीं पर मिलने वाली हैं। समझ गए सर, समझ गए। वो आपने बताया था 10 450, 10 450, 20 450। हाँ, और यहाँ हाँ पे सर अवेलेबल है आपको इज क्रेडिट डेबिट सबमिशन रिक्वायर्ड। अगर आप इसको यस कर दें तो यू विल गेट कि आपको एक साल में कितनी अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हुई, तो लिमिट और कितना क्रेडिट मिला और डेबिट था कितना। तो इन चीजों के बेसिस पे आप रोटेशन वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप पीरियड 1 साल ना डाल के 3 साल का डाल लेते हैं, दैट मीन्स आपने 1-2 क्रॉप सीजन डाल लिए। अगर शॉर्ट क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन डाल लिए, उसके बाद 1 साल का ओवरड्यू भी डाल दिया, उसके बावजूद आप वहां पर पहुंच गए कि डेबिट क्रेडिट कितनी रोटेशन के साथ आया। तो लिमिट और रोटेशन सामने सामने टैली की जा सके। एक अवनीत जी एक पॉइंट है, अशोक जी ने डाला है, नोटिस्ड इन ऑडिट ऑफ बैंक कैश एडवांस 8 लाख टू सेलर ऑफ हाउस। अशोक जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि उन्होंने 8 लाख रुपए का कैश दे दिया, शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है। गुड इवनिंग अशोक जी। गुड इवनिंग सर, सर। नमस्कार। उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था वो जैसे 24 लाख का हुआ था, उसने 18 लाख का तो बैंक ने दे दिया चेक उसको, और 6 लाख जो उसने मार्जिन मनी देना था उसने एग्रीमेंट में दिखा दिया कि कैश आ गया मेरे पास। ये तो वायलेशन है इनकम टैक्स लॉ की। हाँ सर उसका वायलेशन है, आई अंडरस्टैंड, बट आप क्वेश्चन काइंडली बताएं सो सर दैट ये हम। हाँ हाँ जी। क्या वो कैश 2 लाख से ज्यादा कैश दे सकता है सेल डीड में एडवांस? बैंक सर कैसे एक्सेप्ट कर सकता है इसको, सेल एग्रीमेंट को? नहीं नहीं, आप मेरे को सर बैंक के एंगल से इस क्वेरी का थोड़ा सा रिलेशन बता दें। सर बैंक ने कस्टमर से कोई अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं मांगी, जिससे हम ये जस्टिफाई नहीं कर देख सके कि उसने जो एडवांस दिया था 8 लाख का, वो क्या उसने मतलब किसी बैंक से निकलवा के दिया है या कैसे दिया है कैश? वो हमें फर्जी लगता है, जो मार्जिन मनी इंट्रोड्यूस किया ना उसने, वो हमें अच्छा लगता है अच्छा ये अच्छा, फर्जी है। होम लोन के केस में आप कह रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी हाँ, होम लोन के केस में हाँ कैश तो कर ही नहीं सकते सर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना। बैंक कैन टेक अ लीगल एडवाइस ऑन दिस थिंग के क्या हम इसकी जेन्युइनिटी उसको
तहसीलदार या जो भी जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, बैंक वहां से उसकी लीगल ओपिनियन ले सकता है। जी। तो सर हमें तो वैसे ये फेक लग रहा है, ये एंट्री जो है ना मार्जिन मनी, उसने अकोमोडेशन एंट्री है ये 8 लाख की। तो आप एक बार सर वाउचर्स चेक करवा लीजिए, हो सकता है अगर एंट्री सिर्फ पोस्टिंग के नेचर में है, उसका बैकएंड पे एविडेंस नहीं होएगा। और अगर नहीं ऐसा नहीं, एविडेंस का भी एंगल अगर उठाएं वाउचर के बाद, देन आप चेक कर लीजिए भी कैश ट्रांजैक्शंस में एंट्री मूव करके के गई कि नहीं, और देन फिजिकल में उतनी डिनोमिनेशन मूव हुई होगी। सर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये तो। हाँ। सो ऑडिट एंगल से suspicious है। आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ गई सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उस अमाउंट कैश जितनी अमाउंट का फिजिकल रिकॉर्ड यानी वाउचर्स, जी वाउचर अगर अवेलेबल है तो सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर भी अवेलेबल है तो फिर कैश रजिस्टर, अगर जी कैश रजिस्टर में एंट्री है तो डिनोमिनेशन एंगल, जी। क्योंकि 8 लाख की अगर अमाउंट आई है तो कोई डिनोमिनेशन तो आई होगी, और उस डिनोमिनेशन की उसके बाद आउटले भी गई होगी। तो कहीं उस लेवल तक हम पहुंच, मान लीजिए उस दिन जिस दिन कैश की वो एंट्री डाली है, आउटले नहीं है ब्रांच में, कैश आउट कम हुआ है, तो उसका सर वो वैल्यू मिल तो जाना चाहिए था। जो उसने रजिस्ट्री कराई है ना, रजिस्ट्री में उसने ये लिखा है कि हमने 8 लाख इसको कैश एडवांस दिया था। जो मार्जिन मनी है वो सेलर को एडवांस दे दिया था। उसकी कोई डेट नहीं है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग अवेलेबल ऑन फाइल। अवनीश जी, इनके में इनका ये मतलब है कि बायर ने परचेज करते हुए बैंक का 8 लाख की ट्रांजैक्शन बैंक की नहीं है, बायर ने परचेज करते हुए 8 लाख कैश दे दिया सेलर को, और बैंक को जो दिखाई फिगर के मैंने इतने की परचेज करी है, इनके मतलब कि वो 8 लाख बढ़ी हुई फिगर दिखा दी। एम आई राइट सर? जी जी। हाँ, ये मतलब है, बैंक से नहीं कैश निकला, जो डिनोमिनेशन की बात कर रहे हो नहीं बैंक से कुछ कोई नहीं लेन। हुआ, कुछ हाँ। नहीं हुआ। हाँ, तो इनके मतलब कहने का ये है कि जो बढ़ी हुई अमाउंट दिखाई है बैंक को प्रेजेंटेशन लोन लेने के लिए, 8 लाख से अमाउंट को बढ़ा दिया, उसका कोई आपा प्ली ले सकते हैं, कोई चेक कर सकते हैं, कहीं मेंशन करना है लफार वगैरह या कहीं पे, वो बात है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर वैल्यूएशन का एंगल आप उठा सकते हैं कि वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी के लिए बैंक ने जो करवाई होगी, जी। अगर नहीं करवाई या आप सेटिस्फाइड नहीं है तो एज एन ऑडिटर आप बैंक अप्रूव्ड वैल्यूअर से उसकी अगेन वैल्यूएशन करवाने के लिए बैंक को मेल डाल सकते हैं। तो उससे आपको जो वैल्यूएशन मिलेगी उसमें अगर ये 8 लाख का वेरिएशन मिलता है, ये तो हो सकता है कि 15 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाला 16 लिख देगा, बट ये नहीं कि वो 25 लिख देगा। सो सर जो, वैल्यूएशन में तो उसने 24 लाख लिखा हुआ है वैल्यूएशन में। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये 8 लाख नहीं है तो आप सेकंड वैल्यूएशन करवा लीजिए, दूसरा पर्सन तो दोबारा सेम चीज नहीं लाएगा। और अगर कहीं 15-16 का लेवल ही निकल आता है तो पहला वाला वैल्यूएशन भी आपका हो गया और दूसरा भी, तो ये आपका जो एलएफआर में एक फ्रॉड एंगल है उसको भी टच कर जाएगा कहीं ना कहीं। जी सर एक क्वारी और थी मेरी। यस प्लीज। सर एक केस में जैसे किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई मशीनरी परचेज की है किसी से, वो मैन्युफैक्चरर जो कस्टमर है बैंक का बारोर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, और उसने जिससे बिल लिया है वो रजिस्टर्ड है। तो उसने जो वहां पे बिल का तो ई वे बिल मेंशन नहीं किया, क्योंकि 8 लाख की मशीनरी थी वो इनवॉइस पे। एक तो उसमें ई वे बिल का रेफरेंस नहीं है, दूसरा उसने वहां पे लिखा वो ट्रक, जो ट्रक का उसने नंबर डाला वो तो स्कूटर का नंबर है, वो हमने वेरीफाई किया ऐप से। यस यस यस। तो ये सर अगेन अब आपका वो जो फ्रॉड एंगल है उसमें टच हो जाएगा आकर। अगर पार्टी इस तरह के एविडेंसेस दे रही है जो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकते जी और बैंक से फाइनेंस लिया जा रहा है, तो इट इज प्योरली कि कहीं ना कहीं तो मिलीभुगत है ही है। सर हमने आज उसकी इंस्पेक्शन भी डाली थी, फिजिकल इंस्पेक्शन। तो वहां भी हमने मशीनरी जो देखी है, वो पार्टी खुद बता रही थी कि जो तो 6-7 सप्लायर से मशीनरी आई हुई है, उसने सिर्फ बिलिंग की है, जो अनऑफिशियली बताया उसने मुझको। लेकिन ऑब्वियसली। मशीनरी भी पुरानी है वो सारी। बस फिर यही है सर, आप अगर एविडेंस जुटा सकते हैं तो ये आपका फ्रॉड एंगल होएगा, जी ये उसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और क्वेरीज हितेश जी? सर थोड़ी आवाज नहीं आ रही।
क्या हाल चाल राकेश जी, ठीक ठाक हो? नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज जी? हाँ जी बिल्कुल आ गई जी। हाँ जी सर, एनी किसी मेंबर ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ query, any member have any query, he can unmute himself and ask his query. हाँ जी राकेश जी, कोई query? सर किसी की भी कोई query है तो अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर ਆਪਾਂ कंक्लूड करें सर। ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲਕਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ। हाँ जी हाँ, बाकी सर अगर किसी भी मेंबर को पीपीटी रिक्वायर्ड है तो पीपीटी आप मुझे काइंडली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप ही पीपीटी शेयर कर दूंगा। मैं मोबाइल नंबर, मैंने चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। माय मोबाइल नंबर इज 9814925846 9814925846, राइट। चलिए ठीक है सर, अभी कोई सभी क्वेरीज आंसर्ड हो चुकी हैं जो चैट बॉक्स में थी और जो मेरे पास आई थी 2-3 क्वेरी, आपने सबका रिप्लाई दे दिया बहुत अच्छे से, जो डिटेल में आपने डेलीब्रेशन भी की मेंबर्स को। अवनीत जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर डेलीब्रेशन। और आपने, मैं मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि वो इस वेबिनार से पहले काफ़ी मतलब बीमार भी रहे, तब भी उन्होंने बड़ी बीमारी से रिकवर करने के बाद इमीडिएटली यस करी इस वेबिनार के लिए। थैंक यू वेरी मच अवनीत जी फॉर giving us time and at a very short notice. But thanks to all members also for attending this webinar. Thank you very much once again all the members, and Amit ji thank you very much. थैंक यू सो मच जी। Okay जी, okay. सर हिमांशु जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन। थैंक्स हिमांशु जी, थैंक्स एवरीवन फॉर द नाइस पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन एंड हितेश जी ਤੁਸੀਂ अपॉर्चुनिटी ਦਿੱਤੀ। Sir, you deserve it. Thank you ji, thank you.